since every single port is part of one single group, which is VLAN 1, that's why every single systems are able to communicate. But if you configure your ports to be member of different VLANs, then your systems will be isolated. So what we did yesterday, let's give IP to these two systems. Since they are connected to a same switch, they will be having an IP from the same network. Let's say 1.10. The next system is 1.20. Now 1.10 will able to ping 1.20 because both systems are connected to a switch. And switch says my every single port is part of one broadcast domain because my every single port is part of VLAN 1. So if you look for switch, the systems are able to communicate. They are using a command show VLAN. The system are able to communicate because they all are member of same VLAN. So by default, you have VLAN 1 and all the ports are in front of VLAN 1. That's why one single broadcast domain. तो आपका जो जितना भी ports होगा, let's say this is 18 number and 17 number port. 18 number and 17 number ports both are in front of VLAN 1. That's why single broadcast domain. That's why they are all able to communicate. But if you don't want them to communicate, then what you're going to do? You want to put your port into different VLAN. अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं करना है, 10 के बीच में कम्युनिकेशन नहीं करना है, तो उसको अलग अलग पोर्ट में रखो. अलग अलग पोर्ट मतलब अलग अलग VLAN में रखो. So one port cannot be member of two VLANs. एक पोर्ट अगर VLAN 2 में है तो वो 2 में रहेगा, वो 3 में नहीं हो सकता. Since all these ports are member of VLAN 1, that's why all are able to communicate. So what we'll do, we'll configure these two systems, or we will configure these two ports, port number 18 and port number 17, to be member of different VLANs. Once they are configured to be member of different VLANs, they won't be able to communicate with each other. So again, it's configuration. So we need to go to configuration mode. First of all, port को inform करने के पहले हमें VLAN create करना होगा. You need to create VLAN. You give a proper name to that VLAN. So let's say VLAN 2. Name prompt change हुआ. VLAN के अंदर गया तुम लोग. Let's say name HR. So you have created a VLAN 2. You have given a name HR. Exit. Come back to configuration mode. VLAN 3. सगळेच लिहून घेतात म्हणजे तुम्ही कुणीच नाही केलं का काही? Name, let's say production. So you have created two VLANs, VLAN 2 name HR, VLAN 3 name production. So this is your database. This is your database. I want to check how many VLANs I have created. So the command to use is show VLAN. Show VLAN will be a command which will be used to check how many VLANs are there in your database. By default, VLAN 1 was present. All the ports are still member of VLAN 1. You have created two more VLANs, VLAN 2 and VLAN 3, but no port is there in front of VLAN 2 and VLAN 3 because you have created VLANs, but still you have not assigned those ports to different VLANs. ठीक है, तो अभी भी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा क्योंकि अभी भी दोनों पोर्ट VLAN 1 के ही आगे. So even if you create VLAN, still the systems will be able to communicate because ports are still member of VLAN 1. So now we need to inform the ports individually. So let's your 18 number port and 17 number port. So let's go to 18 number port. You have to go to configuration mode. Then under the interface, because you need to inform to the port. So whatever you need to inform to the interface, you have to go under the interface. Switch port, access, VLAN 2. This number indicates that this port from now onwards will be a member of VLAN 2. Exit from this port. The next port is 17 number port.
interface F0/17. I want this port to be member of VLAN 3. I'll use the up arrow key and simply change the number from 2 to 3. Okay. Now, the first thing you did is you configured the database. VLAN 2 name, VLAN 3 name. That was one part. Second part is you need to inform the ports to which VLAN the port belongs. So we went under every single port one by one and we informed the port to which VLAN the respective port should belong. Okay. So again, you'll go to show VLAN. You want to check whether ports are member of different VLANs or not. So initially 17 and 18 number port was in front of VLAN 1, but now 18 number port is in front of VLAN 2 and 17 number port is in front of VLAN 3. That means 17 and 18 number port now are member of VLAN 2 and VLAN 3. अब वो port तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखेगा. 17, 18 वो यहाँ से निकल गया. That means one port can be a member of only one VLAN. So now if 18 number port is member of VLAN 2, 18 number port किसी दूसरे VLAN का member नहीं हो सकता. अगर तुम्हें ये पोर्ट को दूसरे VLAN में डालना है तो वापिस ये पोर्ट के अंदर जाओ, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 करो, ओवरराइट होगा वो. जो पहले 2 में था वो 3 में जाएगा. बट वन पोर्ट कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ 2 VLAN. तुम लोग चाहोगे कि एक पोर्ट मेरा 2 में भी हो 3 में भी हो, वो पॉसिबल नहीं है. आइदर को 2 में हो सकता है, दूसरा वापस कमांड रिपीट किया 3 डाला 3 में जाएगा, वापस कमांड रिपीट किया 4 डाला 4 में जाएगा. ठीक है. So now even if both the systems are connected to a same switch, still they won't be able to communicate because port number 18 is member of VLAN 2 and port number 17 is member of VLAN 3. So let's try to ping. Earlier you were able to ping your neighbor, but now though they are connected to a same switch, they won't be able to ping because they belongs to different VLAN. Okay. Next, what we check? If suppose you have n number of VLANs, let's say 50, 60 VLANs, then you will have to create those 50, 60 VLANs on every single switch. ठीक है ना? So it's a tedious process. हर एक switch का access flow को 50 VLANs create करो. VLAN 2 name, VLAN 3 name, VLAN 4 name, VLAN 50 तक. फिर दूसरे switch का access flow वहां पे जाओ, VLAN 2 name, VLAN 3 name, VLAN 4 name. Again third switch. अगर 100 switches है तो हर एक switch पे जाके 50 VLANs create करना होगा. So for that, there is a protocol. That protocol is called as VTP, VLAN trunking protocol. What VLAN trunking protocol says? There is no need to create VLAN database on every single switch. There is no need to create VLAN database on every single switch. Create your VLAN database on any one switch. And he will take the responsibility to share the database with remaining switches. So किस switch पे करोगे? So VTP says switch can operate in 3 different modes. Your switch can operate in server mode. Your switch can operate in client mode. Your switch can operate in transport mode. तीनों का अलग अलग फंक्शन क्या है? If your switch acts in server mode, then what? You will be able to create, modify and delete VLAN. अगर तुम्हारा switch server mode पे है तो तुम लोग VLAN create कर सकते हो. Create, modify and delete, and he will also propagate. But if your switch is in client mode, he is not going to allow you to create VLANs. So only one job will be left with him is to receive the database, if necessary upgrade and propagate. क्योंकि उसके आगे वाले switch को चाहिए होगा database. So function of client is you cannot create, modify and delete, simply receive, upgrade and propagate. Server, create, modify, delete and propagate. Transparent, he can also create, modify and delete. But whatever he creates, he is not going to propagate to anyone. जो वो create करेगा वो दूसरे को नहीं बताएगा. So difference between server and transparent, server can also create, modify and delete. Transparent can also create, modify and delete. But server, whatever you create, he will share. Transparent, whatever you create, he is not going to share. ठीक है, but whatever he receives, he will simply propagate. वो खुद को upgrade नहीं करेगा. ठीक है. But to share the database, there are 3 conditions. What is that? एक switch से दूसरे switch पे database जाएगा. कब जाएगा? When every single switch belongs to a same group. मतलब सबका domain name same होना चाहिए. And if you provide VTP password, that password
if it is matching, only then your database will be shared, otherwise no. So domain name should be same. VTV password, if you do provide, that should be same. And third is the link between switches should act as a trunk link. तो ये लिंक को हम लोग अपलिंक कहते हैं. ये एंड डिवाइस को कनेक्ट है ना, जो पीसी को कनेक्ट होता है, दैट इज एंड डिवाइस. सो either you have a trunk port or you have a access port, जो हमने कल डिस्कस किया था. So access ports are generally ports. पोर्ट कुछ भी हो सकता है, एक्सेस भी हो सकता है, ट्रंक भी हो सकता है. लेकिन अगर तुम लोग पीसी को कनेक्ट कर रहे हो तो उसको एक्सेस बनाओगे, अगर वो नेबरिंग स्विच को कनेक्ट करोगे तो उसको ट्रंक बनाओगे. व्हाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर दैट अपलिंक एज ट्रंक? ठीक है, डेटाबेस तो एक चीज है, ठीक है, डेटाबेस प्रोपोगेट हो गया, लेकिन बाद में ट्रंक का जरूरत है. अच्छा, डेटाबेस प्रोपोगेट हो गया, बाद में वो लिंक को एक्सेस करो, चलेगा? एक बार वो लिंक का काम हो गया, एक बार डेटाबेस गया, तो उसके बाद वो ट्रंक को वापस एक्सेस करो, चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ, मान लो एक साल तक कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई विलन क्रिएट नहीं हुआ. पहले जब कंपनी स्टार्ट हुआ तभी 20 विलन्स क्रिएट करके रख दिए थे, ट्रंक बना दिया, डेटाबेस गया, अगले एक साल तक कुछ चेंज होने वाला नहीं है, वापस उस लिंक को एक्सेस बना दिया, चलेगा? नहीं, रीजन क्या है? वो हो गया ना स्टार्टिंग में, तभी तो डेटाबेस गया. देख, तुम्हारा डेटाबेस गया, बाद में उस लिंक को वापस एक्सेस बनाओ. बोला. काय शोधतोस? हाँ, जरा मोठ्याने बोलला तर मला ऐकायला येईल, आणि बाकीच्यांना पण येईल. चूक तर चूक, बरोबर तर बरोबर बोललो पाहिजे. हाँ, छान बसून काय होणार आहे का? काय होईल परत ऍक्सेस केलं तर? काल अपन काय डिस्कस केलं कि एक्सेस पोर्ट से जो भी ट्रैफिक जाता है, एक्सेस पोर्ट मतलब क्या? द पोर्ट विच इज कनेक्टेड टू योर पीसी एंड डिवाइस. यहां से जो भी ट्रैफिक आएगा जाएगा वो एक ही विलन का होगा. 17 नंबर पोर्ट, इफ सपोज 17 नंबर पोर्ट इज कॉन्फ़िगर्ड फॉर VLAN 10, वो 17 पोर्ट से ट्रैफिक जो बाहर जाएगा या फिर वो पोर्ट पे ट्रैफिक आने वाला है, वो VLAN 10 का ही होगा. बट दिस लिंक, you have multiple users, let's say HR प्रोडक्शन मार्केटिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी HR प्रोडक्शन मार्केटिंग है, यहाँ पे भी HR प्रोडक्शन मार्केटिंग है, यहाँ पे भी HR प्रोडक्शन मार्केटिंग है. तो ये लिंक से जो ट्रैफिक जा रहा है वो सिर्फ HR का नहीं जा रहा, वो प्रोडक्शन का भी जाना चाहिए, वो क्वालिटी का भी जाना चाहिए. सो दिस लिंक शुड अलाउ ट्रैफिक ऑफ ऑल द विलन्स टू फ्लो. तो हर एक विलन का ट्रैफिक जाना चाहिए. तो हर एक विलन का ट्रैफिक जाएगा कैसे? जब तक वो लिंक ट्रंक नहीं होता तब तक, बिकॉज ट्रंक इज द ओनली पोर्ट विच विल अलाउ फॉर ट्रैफिक ऑफ ऑल द विलन्स टू फ्लो. एक्सेस पोर्ट से सिर्फ एक ही विलन का ट्रैफिक जा सकता है. तो अगर ये बीच वाला लिंक अगर टंग नहीं है, डेटाबेस शेयर तो हो जाएगा, बाद में तुम्हारा कम्युनिकेशन कैसे होगा? जो तुम्हारा फ्रेम जा रहा है वो फ्रेम कैसे जाएगा? यहाँ पे VLAN 2 का बंदा भी बैठा है, 3 का भी बंदा बैठा है, यहाँ पे भी VLAN 2 VLAN 3 है. तो ये VLAN 2 अगर ये VLAN 2 के साथ बात करना चाहता है, उसका ट्रैफिक कहां से जाएगा? ये लिंक के थ्रू जाएगा. अगर ये एक्सेस है तो ये VLAN 2 का, VLAN 3 का, VLAN 4 का ट्रैफिक कैसे अलाउ करेगा? तो द लिंक हैज टू बी ट्रंक. ये सिर्फ डेटाबेस प्रोपोगेट होने तक का नहीं है. It needs to remain trunked, only then your traffic will flow between your different switches. ठीक है? So there is no need to create database on every single switch manually. Create the database on any one switch. That switch will propagate the database to all other switches. On which switch you are going to create the database? On server, because server he will allow you to create, modify and delete. और वो सिर्फ अलाउ नहीं करेगा, वो आप शेयर भी करेगा दूसरे के. तुम लोग ट्रांसपॉन्ट पे अगर डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो ट्रांसपॉन्ट पे करके वो अपने पास रखेगा, दूसरे को शेयर नहीं करेगा. तो उसका फायदा क्या फिर?
If you want to share the database with everyone, then server is the only mode. He will allow you to create and then he is going to propagate. ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, एक स्पेसिफिक लोकेशन आपको आइसोलेशन में रखना है तो वो स्विच को ट्रांसपोर्ट मोड में डाल दो, उस पर अलग कुछ वीलैन क्रिएट करो, वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा और उसके पास जो आ रहा है वो खुद को अपडेट नहीं करेगा, सिंपली प्रोपोगेट करेगा. And when all these will be shared database, when three conditions are true, when all the switches should have the same domain name, they should have the same BTP password, and the link between your switches has to operate as a trunk link. So let's give domain name. Here on second switch. First of all, let's make him client. BTP mode client. Then domain name. चलो इसको क्लाइंट बने, इसको डोमेन नेम पहले यहां से स्टार्ट करते हैं. BTP डोमेन सिस्को, ठीक है. सेकंड स्विच पे जाओगे, वहां पे भी डोमेन नेम सेम देना, BTP डोमेन सिस्को, ठीक है. दोनों पे डोमेन नेम सेम दिया, यहाँ पे भी देते हैं डोमेन नेम, बट वी विल कीप दिस एज ट्रांसपेरेंट. We'll keep this third switch as transparent. BTP mode transparent. Then he also needs to have a same domain name. ठीक है. Third switch we want client. Sorry, fourth one. Fourth one we want a client mode details. BTP mode client. कळतंय का? हा, लीट नाही काय नाही, बरं मला म्हणशील कमांड नाही मिळाला काय नाही, आजचा दिवस पडतो घालू शकतो. तो लेतोय का त्याकडे लक्ष दे, म्हणजे तुझं काम होईल. ठीक है. So we have informed all the switches what they should be. First is your server, second is your client, third is your transparent, fourth is your client. हमने डोमेन नेम पहले पे दिया है ना, चलो पहले पे पासवर्ड भी दे देते हैं. BTP password, let's say Cisco 123. So we have given domain name, you have given the password. Now go to your second switch. Domain we have already given. Give password. It needs to be same. So every single switch should have the same domain name, same password. Go to transparent. Domain name we have given. Let's give password as well. Last is your client one. इसको domain भी नहीं दिया, तो BTP domain Cisco and BTP password Cisco 123. ठीक है. So what we have done, we have given domain name and password for every single switch. हाँ, पासवर्ड आणि डोमेन नेम सगळ्यांना का द्यायचं सेम. अरे तो म्हणतो विचारलं पण तो म्हणतो काय प्रॉब्लेम नाही. हा, सेम दिलं नाही तर डेटाबेस शेअर नाही होणार ना. डेटाबेस शेअर करण्यासाठी एक तर ऑथेंटिकेशन पाहिजे आणि दुसरं सगळे एका ग्रुपमध्ये पाहिजे. म्हणजे समजा या स्विचचा डोमेन नेम मी सिस्को ठेवला आणि या दुसऱ्या स्विचचा डोमेन नेम समजा मी वेगळा काहीतरी ठेवला, मग काय होणार, एका टोपोलॉजी मध्ये मी एक सर्व्हर बनवेन, या दोघांमध्ये एक सर्व्हर राहील, ये दोनों के बीच में एक सर्व्हर होगा, ये दोनों के बीच में एक सर्व्हर होगा. Whatever I create on this, it will be shared with him, but he won't receive. But whatever I create on him, he will be sharing with him, क्योंकि ये दोनों एक ग्रुप में और ये दोनों एक ग्रुप में. But since it's the same organization, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में तुम लोग दो डोमेन नेम क्यों क्रिएट करो? अगर ये एक ऑफिस है तो ऑब्वियसली डोमेन नेम एक होगा, तो जब डोमेन नेम एक है तो वो एक ही सबकी स्विच पे होना चाहिए. एंड इफ everyone is part of same group,
only then your database will be shared. And if every single switch is also having the same BTP password, again that is not compulsory. If you do provide and first यहाँ पे दिया है password तो यहाँ पे भी देना चाहिए. अगर second पे दिया तो third पे भी देना चाहिए, third पे दिया तो fourth पे देना चाहिए. That is the reason your domain name of every single switch should be same. Your password, if you do provide, it needs to be same on every single switch. अब तीसरा क्या बचा? Trunk. ठीक है? So your first switch interface F0/16. This port we want to work as a trunk port. Switch port mode port के अंदर जाओ. Switch port mode trunk. Now once you give access करना है तो access. ठीक है? So switch port mode trunk. Once you configure this port as trunk, neighbor port को करने की जरूरत है trunk? नहीं, क्यों? DTP काम कर रहा है बीच में. So because of DTP, the instant you configure this port as trunk, he is going to send a negotiating message to the neighbor port, and he is going to inform the neighbor that I am trunk, you become trunk, so the link will become trunk. अगर DTP off है, DTP तुम लोग ऑफ कर सकते हो. अगर DTP तुमने ऑफ किया तो फिर वो निगोशिएटिंग मैसेज सेंड नहीं करेगा. तो उस केस में अगर ये पोर्ट को ट्रंक किया, सामने वाले पोर्ट को भी जाके ट्रंक करना होगा, क्योंकि डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल अगर डिसेबल है तो निगोशिएटिंग मैसेज वो सेंड ही नहीं करेगा. So since DTP is working by default, that's why even if you configure one port as trunk in the uplink, the neighbor port in the uplink will automatically become the trunk. ठीक है? चलो ये पहले स्विच का किया. Let's go to second switch. सेकेंड स्विच का पोर्ट ये ट्रंक करना है या इस पोर्ट ये स्विच के दो पोर्ट ट्रंक करें? हाँ, ये स्विच ये लिंक ट्रंक चाहिए. ठीक है, तो ये लिंक ट्रंक करने के लिए ये पोर्ट ट्रंक करूं या फिर थर्ड स्विच का एक्सेस लेके ये दोनों पोर्ट ट्रंक करूं? चलेगा ना? ये पोर्ट ट्रंक किया तो ये निगोशिएटिंग सेंड करेगा, ये ट्रंक बनेगा. ये पोर्ट को ट्रंक किया, ये निगोशिएटिंग सेंड करेगा, ये ट्रंक बनेगा. ठीक है, सो 16 and 14 interface F0/16 switch port mode trunk. This is your 0/16. We are on third switch. 14 को भी करना है. So simply change the port number 14 and use the same command by using up arrow key. Hit enter. ठीक है, तो we have configured these two ports. ये पोर्ट ट्रंक हुआ तो ये लिंक ट्रंक हो जाएगा. ये पोर्ट ट्रंक किया तो ये लिंक ट्रंक हो जाएगा. फिर पहले स्विच का ये पोर्ट ट्रंक किया हुआ था तो ऑब्वियसली ये लिंक ट्रंक बनेगा. ठीक है, नाउ दिस इज योर क्लाइंट, दिस इज योर ट्रांसपेरेंट, दिस इज आल्सो योर क्लाइंट. Both are all four are having the same domain name, all four are having the same BTP. ठीक है, let's go to client. चेक करते हैं उसके पास डेटाबेस आया है कि we haven't configured anything on your client. So even though we have not configured any VLANs on your second switch, but still is showing VLAN 2 and VLAN 3. Why? Because as we discussed, whatever database you create on your server, that will be shared with your neighbors if they have the same, if they come under same domain name, same BTP password, and if the link between switches acting as trunk link. ठीक है, तो ये तुम्हारा सेकंड पे आ गया. थर्ड इज योर ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट पे होगा, ट्रांसपेरेंट पे दिखेगा डेटाबेस. हाँ, ट्रांसपोर्ट में नहीं दिखेगा. ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? रिसीव फॉरवर्ड. ट्रांसपोर्ट भी अगर अपने आप को अपग्रेड करेगा तो डेटाबेस तो सेम ही निकला, फिर तो कम्युनिकेशन होगा. फिर उसको ट्रांसपोर्ट मारने का फायदा क्या? तुम लोग वो तीसरा जो स्विच है वो लोगों को तुम लोग आइसोलेशन में रखना चाहते हो. यहाँ पे जो भी यूजर बैठा है, you want these people who are connected to a third switch that they should not communicate with anyone else and nor others should communicate with them. वो तभी पॉसिबल है जब इनका VLAN और इनका VLAN अलग अलग हो. अगर ये स्विच पे डेटाबेस, सर्वर पे डेटाबेस क्रिएट किया और वो ट्रांसफॉर्म भी अगर अपने आप को अपग्रेड कर रहा है तो डेटाबेस तो इसके पास भी सेम हुआ, जो कि हमें नहीं चाहिए ना. वी डोंट वांट दीस पीपल टू कम्युनिकेट विद एनीवन. तो इसका डेटाबेस कंप्लीटली अलग होना चाहिए. दैट्स व्हाई व्हाटएवर ही रिसीव फ्रॉम द नेबर, ही इज नॉट गोइंग टू अपग्रेड हिमसेल्फ, ही इज गोइंग टू सिंपली रिसीव एंड फॉरवर्ड, क्योंकि ये क्लाइंट है, इसको तो चाहिए ना. ठीक है,
So if we look at the transparent switch, show VLAN, he is not showing anything because his job is to simply receive and forward. तो इसने रिसीव किया होगा और फॉरवर्ड किया होगा, तो इसको मिलना चाहिए. तो we are on fourth switch. So VLAN. So your fourth is showing the database. ठीक है. So your VLAN database, there is no need to create VLAN database on every single switch. ये 2 VLAN से इसलिए तुम्हें लग रहा है इतना कुछ है नहीं, लेकिन अगर 200-300 VLAN है तो क्या हर एक स्विच पे क्रिएट करोगे? तो किसी एक स्विच को सर्वर रखोगे जहां पे एडमिन बैठता है या जो भी है, और उस स्विच पे वो डेटाबेस क्रिएट करते जाएगा, वो प्रोपोगेट होते जाएगा. द मेन कंसर्न इज एवरीवन शुड हैव द सेम डेटाबेस, और वो हो रहा है. अगर बीच में कोई ट्रांसपॉन्ड है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके आगे वो शेयर तो कर सकता है. और ट्रांसपॉन्ड इसलिए तुमने उसको बनाया बिकॉज यू डोंट वांट ट्रांसपॉन्ड स्विच पीपल टू कम्युनिकेट विद अदर्स. ठीक है ना. सो वॉट एवर यू क्रिएट ऑन ट्रांसपॉन्ड, नाउ ट्रांसपॉन्ड पे कुछ है नहीं क्योंकि उसने सिर्फ रिसीव और फॉरवर्ड किया, लेकिन ट्रांसपॉन्ड पे भी तुम लोग वीलन क्रिएट कर सकते हो. लेट्स से वीलन 10. Name, let's say quality. So whatever you create on your transparent, it will stay with transparent. उसके पास ही रहेगा वो तुम लोग इसके नेबर वाले क्लाइंट पे जाके देखो, इस पे नहीं है 10, सर्वर पे जाके देखो. So whatever you create on transparent stays within transparent. He's not going to share with anyone else. ठीक है. Because simply transparent का मतलब ये है कि you want to keep the people who are connected to transparent switch in isolation mode compared to others. We don't want these people to communicate with others. तो वो एक ही ऑप्शन है, इसको आइसोलेशन में डालो. ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको आइसोलेशन में डाला तो चौथे वाले को कुछ नहीं मिला. इसके आगे 50 स्विचेस हो सकते हैं, तो ही शुड एटलीस्ट शेयर एंड फॉरवर्ड इफ इज नॉट अपग्रेडिंग. ठीक है. तो आगे के स्विच को डेटाबेस मिलता जाए. क्लियर है. और क्या देखा था? ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर. क्यों लगता है कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर? अगर कौन, हाँ लेकिन क्यों, जरूरत क्या है? बार बार पूरा पैकेट देखने की जरूरत नहीं. मतलब if you are having 100 VLANs on your first switch, if you create one more VLAN, it will be 101. If that database मतलब वो क्या सिर्फ 101 नहीं जाता, पूरा जाता है डेटाबेस. तो सेकंड के पास पहले ही 100 VLANs है ना, तो he is going to open that envelope, he is going to check the database, 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है. At last he'll come to know 101 है मेरे पास नहीं है, then he is going to upgrade. So this will take lot amount of time. तो उसके लिए क्या हुआ, एक सिंपल लॉजिक है. एनवलप खोल के देखना नहीं है, सिंपली एनवलप के ऊपर एक रिवीजन नंबर होगा, दैट विल बी कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर. व्हाटएवर यू चेंज ऑन योर सर्वर, कुछ भी चेंज करो, even if you delete VLAN, even if you add VLAN, or even if you change the name of your VLAN, whatever you do on your server, your configuration division number is always going to increment by 1. तो कुछ भी चेंज हुआ, कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर 1 से इंक्रीमेंट होगा, डेटाबेस जाएगा सेकंड स्विच के पास, सेकंड स्विच विल रिसीव द डेटाबेस, ही इज नॉट गोइंग टू ओपन द एनवेलप टू चेक हाउ मेनी VLANs आर देयर, बट सिंपली इज गोइंग टू चेक द नंबर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन दैट एनवेलप. वो नंबर क्या है वो सिर्फ देखेगा, नंबर उसको पता चलेगा, लेट्स से नंबर 46, मेरे पास डेटाबेस उसका नंबर क्या है 45 होगा, ऑब्वियसली कम होगा. So it gives a clear indication to the switch that whatever database I have visited is more recent, so I need to upgrade myself. तो वो क्या करेगा, अपना डेटाबेस वाइप आउट करेगा और वो जो आया हुआ डेटाबेस अपने लॉग्स में रख देगा. ठीक है. दिस रिड्यूसेस टाइम इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है. यहां तक क्लियर है. नाउ now let's say
ठीक है. So now let's say this user who is member of VLAN 3, he wants to share a data with all the users. मतलब ऐसा सोचो कि he wants to share data with his department. तो वो क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा. ठीक है. So he'll generate a frame. इसका खुद का मैक लेट्स से AAA. So he'll generate a frame with source MAC will be AAA, right? ब्रॉडकास्ट करना है मतलब वो उस डिपार्टमेंट को उसको सबको सेंड करना है वो डेटा. So the destination will be FFF. ठीक है. अब लेट्स से ये पोर्ट है, पोर्ट नंबर 5. अब वो फ्रेम स्विच के पास आएगा. स्विच किसको सेंड करेगा? सबको मतलब कनेक्ट होंगे सबको कनेक्ट नहीं, सबको मतलब कौन? उसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है. सबको मतलब कौन? हाँ, सबको मतलब किसको? बोलो, सबको मतलब किसको जाएगा? VLAN 3, VLAN 4 को, 2 को. दैट मीन्स आपने VLAN किया है तो ऑब्वियसली ब्रॉडकास्ट अगर होता भी है तो वो VLAN को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा. वही तो VLAN का मतलब है. पहले ब्रॉडकास्ट सबको क्यों जा रहा था? क्योंकि सभी पोर्ट VLAN 1 में थे, इसलिए वो सबको जा रहा था. अभी VLAN 2 में अगर 5 नंबर का पोर्ट है तो ऑब्वियसली उसका ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट होता भी है तो VLAN 2 में ही होगा, उसके बाहर नहीं होगा. ठीक है. सो लेट्स से ब्रॉडकास्ट किया, VLAN 2 में ये भी पोर्ट है, लेट्स से ये भी एक पोर्ट रहता, ये तीन दोनों पोर्ट तो जाने ही वाला है. लेकिन VLAN 2 के VLAN 3 के यूजर्स यहाँ पे भी है. ठीक है. लेट्स से वो यहां से गया. ठीक है. सेकंड स्विच के 2 नंबर पोर्ट पे आके हिट होगा. ठीक है. अब ये सेकंड स्विच को कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेम किसका है? देखो, क्योंकि इसके पास एक फ्रेम आया. क्या फ्रेम है? सोर्स इज AAA, डेस्टिनेशन इज ब्रॉडकास्ट. ठीक है. अच्छा, पहली बात ये बताओ, ये स्विच को कैसे पता चला कि ये VLAN 3 का फ्रेम है? स्विच को कैसे पता चला कि ये फ्रेम VLAN 3 का है? पहले उसको पता चलना चाहिए कि ये फ्रेम VLAN 3 का है, फिर वो VLAN 3 में ब्रॉडकास्ट करेगा. नीचे का यूजर है, उसने एक फ्रेम जनरेट किया, AAA सोर्स है, डेस्टिनेशन FFF है, वो स्विच के पोर्ट पे हिट हुआ. अब स्विच को ये पता करना है, अगर स्विच को ये पता चलता है कि ये फ्रेम VLAN 3 का है. दुसरं कोण आपल्या बॅच मध्ये आज? तो स्विच को ये कैसे पता चला? देखो, अगर वो स्विच को पता चलता है कि ये फ्रेम VLAN 3 का है तो वो VLAN 3 में ब्रॉडकास्ट करेगा. ठीक है. क्योंकि डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट है. वंस ही कम्स टू नो दैट दिस फ्रेम इज अ मेंबर ऑफ VLAN 3, देन ही इज गोइंग टू ब्रॉडकास्ट टू ऑल द पोर्ट्स व्हिच आर आल्सो मेंबर ऑफ VLAN 3. लेकिन स्विच को सबसे पहले ये कैसे पता चला कि ये फ्रेम VLAN 3 का है? सोर्स. पण त्याच्यात कुठे काही नाही ना, म्हणजे त्या फ्रेम मध्ये कुठे काही मॅक वगैरे कुठे, म्हणजे मॅक आहे पण त्या मॅक वरून काय काम? System has generated a frame with a source MAC with a destination MAC. The frame has hit at port number 5. स्विच को जब ये पता चलेगा कि ये फ्रेम VLAN 3 का है तभी वो VLAN 3 के लोगों को ब्रॉडकास्ट करेगा. उसको पता कैसे चलेगा कि ये फ्रेम VLAN 3 का है?
हम्म, बोल बोल। हाँ नहीं, आर्ट नहीं कर सकता। 5 नंबर का पोर्ट वो पीसी विलन 3 में क्यों है? वो पीसी विलन 3 में क्यों है? हाँ हाँ। अरे बोलो रे बाबा, तुम लोग बोर बंदे हो सब लोग। इंटरव्यू कैसे दोगे रे तुम लोग? असंच गॅरंटी घेणार का? नाही बोलला तरी घ्या. चूक तर चूक, तुम्ही बोललं पाहिजे ना. तुम्ही आता नाही सुरुवात केली तर कधी 6 महिन्यानंतर इंटरव्ह्यूच्या पहिल्याच इंटरव्ह्यूला सुरुवात करणार का? मग 10 इंटरव्ह्यू जातील तुमचे असेच. 11 इंटरव्ह्यू तुम्हाला कळेल की आता बोलावं लागेल. मग काय असेल ना, शेजारच्याला नका सांगू. मोठ्याने सांगा, म्हणजे सगळ्यांना. कसं चुकीचं जरी असलं तरी सगळ्यांना कळतं ना की बाबा हे चूक आहे. बरोबर पाय ते पण समजा एकाने सांगितलं तेही सगळ्यांना कळतं की बरोबर आहे. आसपास मत बोलो, गलत तो गलत. ये पीसी विलन 3 में क्यों है? थैंक यू। वो 5 नंबर का पोर्ट विलन 3 में कॉन्फ़िगर हमने किया है तो पीसी 3 में होगा ना. वो 5 नंबर का पोर्ट अगर हमने विलन 3 में कॉन्फ़िगर किया है, इसलिए वो पीसी विलन 3 में है. एवढा कसला विचार करतोय? हा 5 नंबरचा पोर्ट आपण कॉन्फ़िगर केला है, इसका मतलब वो पीसी विलन 3 में होगा ना. तो नीचे से जो भी फ्रेम आएगा, नीचे से जो भी फ्रेम आएगा, द सोर्स मैक इज ट्रिपल ए, डेस्टिनेशन मैक इज डबल एफ डबल एफ. Switch says I have received a frame via port number 5, and port number 5 is member of VLAN 3. So this frame has to be a member of VLAN 3. 5 नंबर पोर्ट से मेरे पास एक फ्रेम आया, 5 नंबर पोर्ट डेटाबेस में है कि वो VLAN 3 का मेंबर है, इसका मतलब वहां से आने वाला फ्रेम VLAN 3 का ही होगा. ठीक है ना? So he assumes that since I have received a frame via port number 5 and port number 5 has been configured for VLAN 3, so whatever I receive from port number 5 will be always be a member of VLAN 3. Assume किया उसने, सही assumption है. ठीक है? So he assumed that this frame is a member of VLAN 3. ठीक है? अभी उसको देखना है कि VLAN 3 में कौन कौन है, वो कितने कितने सारे पोर्ट्स VLAN 3 में. चलो उसको पता चला ये भी पोर्ट नंबर 7, 8, 9 ये भी है, सबको किया ब्रॉडकास्ट. लेकिन कुछ VLAN 3 के यूजर्स यहाँ पे भी है, वो उनको भी जाना चाहिए. लेट्स एज्यूम कि उसने ट्रांसफर तो कर लिया यहाँ साइड. ठीक है, अब ये 2 नंबर पोर्ट पे हिट होगा वो फ्रेम. अब सेकंड स्विच ने जब वो रिसीव किया, उसको सेंड करना है ये पोर्ट को. लेट्स से पोर्ट नंबर 10, पोर्ट नंबर 11. सेकंड स्विच को ये कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेम VLAN 3 का है? पहले स्विच को समझ में आया क्यों? उसको 5 नंबर पोर्ट से फ्रेम आया, 5 नंबर पोर्ट VLAN 3 में कॉन्फ़िगर्ड है, उसने अज्यूम किया आई हैव रिसीव्ड अ फ्रेम बाय पोर्ट नंबर 5, पोर्ट नंबर 5 इज कॉन्फ़िगर्ड फॉर VLAN 3, सो ये फ्रेम VLAN 3 का ही है 100%. उसने देखा डेस्टिनेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट. चलो मेरे कितने पोर्ट्स है VLAN 3 में, वो खुद के स्विच पर आइडेंटिफाई किए, उसको भी मैन्युअली तुमने कॉन्फ़िगर किया होगा. उसने वो पोर्ट को ट्रांसफर, वो फ्रेम को ट्रांसफर किया इनपुट. लेकिन कुछ सिस्टम्स दूसरे स्विच पे है, तो एक एज्यूम करते हैं कि चलो इसने सेंड भी किया इस तरह. अब वो आ गया सेकंड स्विच पे. अब सेकंड स्विच के 2 नंबर पोर्ट पे हिट होने के बाद सेकंड स्विच को कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेम VLAN 3 का है? अगर उसे पता चलता है ये फ्रेम VLAN 3 का है, तो वो उठा के ये दोनों को सेंड करेगा. लेकिन हाउ योर सेकंड स्विच विल कम टू नो कि ये आया हुआ फ्रेम VLAN 3 का है? क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे फ्रेम आ रहे हैं, इसका भी फ्रेम आएगा. यहाँ पे VLAN 4 है, VLAN 4 का भी फ्रेम आ सकता है. ये ट्रंक पोर्ट है ना, वाया ट्रंक पोर्ट मल्टीपल VLAN ट्रैफिक फ्लोज. तो हाउ योर सेकंड स्विच विल कम टू नो कि ये आने वाला जो अभी फ्रेम जस्ट मेरे पास आया 2 नंबर पोर्ट पे हिट हुआ है, वो VLAN 3 का है. करते से इसको पता चलेगा वो विलन 3 में कनेक्टेड है सिस्टम में. नहीं.
नहीं, इसके अपने पोर्ट्स उसको पता है किस VLAN में, क्योंकि उसको तुमने कॉन्फ़िगर किया होगा। लेकिन जो फ्रेम आया, फ्रेम में क्या था, ये था। इससे क्या पता चलता, इसका मतलब क्या, जो भी फ्रेम जब ये ट्रंक लिंक के थ्रू जाता है, तब उस फ्रेम के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन होना जरूरी है VLAN नंबर का। सिर्फ सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक से नहीं होने। सो व्हेनेवर फ्रेम ट्रैवल्स वाया ट्रंक, सुनो पहले, whenever frames travel via trunk, it always attaches a label to the frame providing information about VLAN number, जिसको हम लोग टैग कहते हैं। जब भी फ्रेम ट्रंक पोर्ट के थ्रू बाहर जाएगा, हमेशा उसको एक लेबल लगा दिया जाएगा, ये किस VLAN का। और जब ये विद लेबल जब जाएगा सेकंड स्विच के पास, सेकंड स्विच फ्रेम ओपन करके लेबल देखेगा, लेबल 3 का है, तो ये देखेगा डेस्टिनेशन क्या, ब्रॉडकास्ट, तो ये 3 नंबर वाले जितने भी 3 में उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। एंड दिस इज डन बाय 2 प्रोटोकॉल्स, इसको हम लोग कहते हैं एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। 2 प्रोटोकॉल है, एक तो ISL विच इज फ्रॉम सिस्को, और दूसरा 802.1q विच इज IEEE स्टैंडर्ड। लेबलिंग लगाने का काम 2 प्रोटोकॉल करते हैं। एक तो ISL इंटर स्विच लिंक डिजाइन बाय सिस्को फॉर सिस्को, ये सिर्फ सिस्को स्विचेस पे ही काम करेगा। तो आपका जूनिपर स्विच है या ब्रोकेड है और किसी कंपनी का स्विच है, तो उस पे ये काम नहीं करेगा। सो ऑब्वियसली यू विल हैव टू गो विद IEEE 802.1q यूनिवर्सल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सिस्को भी अभी ये सपोर्ट करता है। तो एनकैप्शन प्रोटोकॉल का क्या काम है फिर, फ्रेम अगर बिना लेबल के ट्रंक के थ्रू जाता है, तो वो डेस्टिनेशन को पहुंचने के बाद वो फ्रेम में क्या है कि उसको समझ में आएगा कि ये किस VLAN का है, कुछ भी नहीं है, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, और बाकी तुम्हारा पैकेट साइज लेंथ वगैरह ये वो, लेकिन VLAN नंबर किधर है। तो जब भी कोई ट्रंक से जाएगा, उसको लेबल अगर VLAN का हो, तभी जाके सेकंड स्विच वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये किस VLAN का है। सो whenever anything is sent via trunk, switch always attaches a label, मतलब फ्रेम जाता है लेबल लगा के, आता है लेबल लगा, मतलब ये 1 नंबर पोर्ट के थ्रू जो भी बाहर जाएगा वो लेबल लगा के बाहर जाएगा। 1 नंबर पोर्ट पे जो भी आ रहा है, इसने लेबल लगाया होगा ना, तभी इधर आएगा। तो आने वाला फ्रेम भी विथ लेबल होगा, सेंड होने वाला फ्रेम भी विथ लेबल होगा। जब भी कोई भी फ्रेम आएगा स्विच के पास, सबसे पहले लेबल देकर किससे आया, VLAN 10 डेस्टिनेशन देखेगा। अगर ब्रॉडकास्ट उसको पता है VLAN 10 में मेरे स्विच के कौन से पोर्ट्स VLAN 10 में से, उन्हीं को सेंड करे। समझ में आ रहा है? So whenever any frame travels via trunk, it is always, it's compulsory to attach a label। अगर तुम लोग, और ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, अटैच करो करके। By default this protocol works in background। तो by default जो भी फ्रेम ट्रंक के थ्रू जाएगा, लेबल लगा के ही जाएगा। ठीक है, तो अगर एनकैप्शन प्रोटोकॉल अगर नहीं होता तो क्या होता, जो नेबर स्विच पे जब फ्रेम जा रहा है, उसको पता नहीं चलता ये फ्रेम कहां से आया, जिस पोर्ट से आया वो ठीक है, लेकिन ये है किसका। जब VLAN नहीं था तब प्रॉब्लम नहीं है, when everyone is member of VLAN 1, तो क्या प्रॉब्लम, क्यों चाहिए फिर VLAN नंबर देखने की, क्या जरूरत है। ब्रॉडकास्ट है तो सभी को करना है ना, सभी एक ही VLAN में है। अगर सभी VLAN 1 है, इसका मतलब पहले स्विच के 24 पोर्ट भी VLAN 1, दूसरे स्विच के 24 पोर्ट भी VLAN 1, तीसरे स्विच के 24 पोर्ट भी VLAN 1, कुछ VLAN ही नहीं है। तो ब्रॉडकास्ट मतलब ऐसे भी सभी को सेंड करना है, तो VLAN नंबर देख के भी क्या करने वाला, और VLAN नंबर देखे भी क्या होगा, VLAN 1 ही होगा ना उसके अंदर। तो देख के भी VLAN, सभी पोर्ट VLAN 1 के अंदर है, तो देख के भी सभी को सेंड करना है, नहीं देखा तो भी सभी को सेंड करना है। तो जब VLAN है ही नहीं, तब लेबल का जरूरत नहीं है। बट व्हेन यू हैव मल्टीपल VLANs, then the trunk link will carry traffic of multiple VLANs। तो जब वो डेस्टिनेशन स्विच पे जाएगा, तो स्विच को वो डेस्टिनेशन,
तुम्हारे जिस स्विच ने वो फ्रेम जनरेट किया उसको पता है ये किस VLAN का है। क्यों पता है? क्योंकि वो फ्रेम किसी एक पोर्ट से आया, वो पोर्ट उसको पता है ये VLAN 3 का है। वो फ्रेम का कोई लेबल नहीं था, जो फ्रेम यहाँ पे आया था ये 2 नंबर पोर्ट पे जब वो फ्रेम हिट हुआ, ये फ्रेम जो जनरेट हुआ था विद AAA सोर्स, डेस्टिनेशन कुछ भी हो, ये पोर्ट पे हिट हुआ, क्या उसके पास लेबल था? नहीं था। तो ये फ्रेम यहां तक आता है बिना लेबल का है। बट स्विच केम टू नो दैट दिस इज अ मेंबर ऑफ VLAN। मान लो ये पोर्ट अगर तुमने VLAN 3 में कॉन्फ़िगर किया, तो उसको पता है कि मेरा 2 नंबर पोर्ट VLAN 3 में है, इसका मतलब नीचे से कोई भी आएगा वो VLAN 3 का ही होगा। अगर मान लो ऐसा होता, ये स्विच है, ये दूसरा स्विच है, और यहां पे तुम्हारा पीसी है, 2 नंबर पोर्ट AAA, और यहाँ पे तुम्हारा दूसरा एक पीसी है, ये भी, ये तुम्हारा VLAN 3 है, और ये भी तुम्हारा VLAN 3 है। अब बीच में ये आ गया ना, जब ये पोर्ट पे हिट हुआ फ्रेम, यहां से निकला, ये पोर्ट पे हिट हुआ, स्विच ने चेक किया, 2 नंबर पोर्ट पे मेरे पास एक फ्रेम आया है, 2 नंबर पोर्ट किस VLAN का है? 3 VLAN का है, सो ये फ्रेम VLAN 3 का ही होना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या कि ये पोर्ट मैंने 2 में कॉन्फ़िगर किया है और पीसी मेरा 3 में? हम लोग पीसी को नहीं डालते VLAN में, पोर्ट को डालते हैं। तो पोर्ट जिस VLAN में होगा, ऑब्वियसली उसके नीचे जो भी कनेक्ट होगा, वो प्रिंटर हो, वाईफाई वाला डिवाइस हो, कोई भी हो, पोर्ट अगर उस VLAN में है तो उसका नीचे वाला डिवाइस उसी VLAN में होगा। हम लोग पीसी को नहीं बताते कि तू VLAN 2 का है। तब तुम लोग कह सकते थे गलती से मैंने पीसी को बोला तू VLAN 5 का है और पोर्ट कॉन्फ़िगर किया है VLAN 3, तो तुम लोग बोल सकते हो कि पीसी का फ्रेम आया 5 वाला और पोर्ट कॉन्फ़िगर है VLAN 3 का। हम लोग ये लोगों को VLAN कंसेप्ट कहां पे चलता है? स्विच पे चलता है ना। वो क्या पीसी का फंक्शनलिटी नहीं है, प्रिंटर का नहीं है, फोन का नहीं है, वाईफाई का नहीं है, कैमरा का नहीं है, वो तुम्हारे स्विच का है। तो पोर्ट ये कॉन्फ़िगर कर रहे हो तुम लोग VLAN, तो नीचे कोई डब्बा भी लगाओगे तो वो डब्बा उस VLAN का बनेगा, क्योंकि वो जिस पोर्ट को कनेक्ट है वो पोर्ट VLAN 3 का है। तो जब ये फ्रेम नीचे से कुछ भी आ रहा है, वो चेक करेगा कहां से आया, पोर्ट नंबर 2 पे आके फ्रेम हिट हुआ है। पोर्ट नंबर 2 पे फ्रेम हिट हुआ तो ऑब्वियसली वो फ्रेम VLAN 3 का ही होना चाहिए। तो इसका अगर VLAN 2 के यूजर्स यहाँ पे भी होते तो ये इनको ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे भी तो VLAN 3 है, तो उसको यहाँ पे भी सेंड करना होगा इसके थ्रू। तो जब इसके थ्रू जाए, यहां तक ठीक था, वो बिना लेबल का घूम रहा था, क्योंकि स्विच ने रिसीव किया पोर्ट नंबर 2 पे, स्विच ने कहा कि पोर्ट नंबर 2 VLAN 3 का मेंबर है, तो ये फ्रेम VLAN 3 का है, उसको पता चला कि ये फ्रेम VLAN 3 का है। लेबल था क्या फ्रेम पे? नहीं था। ही केम टू नो दिस फ्रेम इज अ मेंबर ऑफ VLAN 3। अभी ये क्या डेस्टिनेशन है? ब्रॉडकास्ट। तो उसको ये भी पता है मेरे कौन से पोर्ट VLAN 3 में है, वो दे देगा सबको। लेकिन VLAN 3 का बंदा यहाँ पे भी बैठा है, तो इसका मतलब वो फ्रेम इसके थ्रू जाना चाहिए ना बाहर। जब इसके थ्रू जाएगा तब वो इसको पता था दिस फ्रेम वाज मेंबर ऑफ VLAN 3 बिकॉज ही रिसीव्ड अ फ्रेम वाया पोर्ट नंबर 2 पे, उसने फ्रेम रिसीव किया पोर्ट नंबर 2 VLAN 3 में, सो ही करेक्टली अज्यूम्ड वो फ्रेम VLAN 3 का है। लेकिन जब सेकंड स्विच को हिट करेगा, सेकंड स्विच किस बेस पे अज्यूम करेगा? वो अज्यूम करने लगा तो ये भी अज्यूम कर सकता है कि वो VLAN 5 का है, वो ये भी अज्यूम कर सकता है वो VLAN 10 का है, क्योंकि ये पोर्ट थोड़ी एक VLAN का कॉन्फ़िगर है, ये तो ट्रंक है ना। अगर ये पोर्ट तुम्हारा VLAN 3 में होता तो स्विच कहता कि ठीक है मेरे पास एक फ्रेम है और वो पोर्ट VLAN 3 का है, तो ये फ्रेम VLAN 3 का होगा। तो फिर ये ट्रंक लिंक कैसे बनता? ये एक्सेस पोर्ट है ना फिर। तो अगर ये ट्रंक लिंक है, मतलब इस पोर्ट पे कोई एक VLAN कॉन्फ़िगर नहीं है, तो ये पोर्ट पे जब फ्रेम हिट करेगा तो स्विच कैसे एज्यूम करेगा कि ये VLAN 3 का है, VLAN 4 का है, VLAN 5 का है। तो जब एक स्विच से दूसरे स्विच जब फ्रेम जाएगा, तब लेबल इंपॉर्टेंट है ना। यहां से जब जाएगा ट्रंक लिंक से, तो इट हैज टू गो
ऑलवेज विथ अ लेबल। टैग, इसमें नंबर होगा, तब जाके वो ये पोर्ट पे, ये पोर्ट ट्रंक है, इस पे हिट होगा, वो चेक करेगा लेबल, क्या लेबल है, 3 नंबर, फिर चेक करेगा, ठीक है 3 नंबर का विलन है, पता चला, आगे क्या करना है, डेस्टिनेशन चेक करो, क्या डेस्टिनेशन, डबल है, वो चेक करेगा मेरे कौन से पोर्ट विलन 3 में, ठीक है। सो टैगिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन योर फ्रेम ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्विच टू अनदर स्विच, बिकॉज योर नेबर स्विच कैन नॉट अज्यूम, उसका एक परफेक्ट रीजन चाहिए समझने के लिए फ्रेम किसका है, so that will be with the label. So who will do work of attaching the label? Encapsulation protocol. क्या करता है encapsulation protocol? टैग देता है, कब देता है, फ्रेम को देता है, कब देता है, से बाहर whenever he sends anything outside trunk. फ्रेम देखो, फ्रेम स्विच के अंदर घूम रहा है, विथ लेबल घूम रहा है, उसको लेबल नहीं है, जैसे उसको ट्रंक पोर्ट के थ्रू बाहर सेंड करना है, उसको लेबल लगा के सेंड करेगा, अंदर घूम रहा है तो बिना लेबल का घूम रहा है, ठीक है। जैसे ट्रंक पोर्ट के थ्रू, जितने ट्रंक पोर्ट्स हो, सभी ट्रंक पोर्ट के थ्रू अगर बाहर सेंड करना है तो विद लेबल घूमेगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल, ये बाय डिफॉल्ट काम करता है, हमें कॉन्फ़िगर करके उसको बताने की जरूरत नहीं कि एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स से दिस इज VLAN 2 यूजर, ही वांट्स टू सेंड अ ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो ये VLAN 2 में दोनों पोर्ट, तो ये पोर्ट पे हिट हुआ, लेट्स से दिस इज पोर्ट नंबर 7 एंड दिस इज पोर्ट नंबर 8, चलो VLAN 2 में और एक है पोर्ट नंबर 9, ये भी VLAN 2, इसने एक फ्रेम जनरेट किया जिसका सोर्स है AAA डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट, frame received at port number 7. Switch says, okay, I've received a frame at port number 7. This frame or this port is member of VLAN 2. So this frame has to be a member of VLAN 2. ठीक है, तो उसको ये पता चला ये किस VLAN का फ्रेम, अभी वो डेस्टिनेशन चेक करेगा, डबल है, तो उसके अपने 8 और 9 नंबर भी पोर्ट भी आपको VLAN 2 में दिखेंगे, तो इसको भी ब्रॉडकास्ट करेगी, ठीक है। अब उसको ये मान लो यहाँ पे, चलो यहाँ पे VLAN 2 है, ठीक है। अब उसको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे VLAN 2 का यूजर है, तो मुझे ये ट्रंक लिंक के थ्रू नहीं सेंड करना है, ये ट्रंक लिंक के थ्रू ही सेंड करना है। अगर वो ये ट्रंक लिंक के थ्रू सेंड करता, उसका कोई मतलब है, VLAN 2 का कोई है नहीं, बेवजह ट्रैफिक जाता, तो ये किसको कैसे समझ में आएगा कि VLAN 2 को सेंड करना है ना ब्रॉडकास्ट, चलो मेरे 8 और 9 नंबर पोर्ट है उनको तो मैंने सेंड कर दिया, लेकिन ये जो 3 नंबर का पोर्ट है, ये ट्रंक है, इसके थ्रू भी कुछ डिवाइसेस है जो VLAN 2 में है, उनको भी जाना चाहिए, तो उन्हें उसने इसके थ्रू भी सेंड किया। ये स्विच को पता कैसे चला, फर्स्ट स्विच को, कि 3 नंबर पोर्ट के थ्रू भी कुछ डिवाइसेस आगे है जो VLAN 2 में है। स्विच अपना मैक एड्रेस टेबल कैसे फिल करता है, तो इससे जब कोई पैकेट आता है तो उसका एड्रेस को सर्व करते हैं। मैक एड्रेस टेबल हम लोग फिल नहीं करते, तो स्विच मैक एड्रेस टेबल कैसे फिल करता है, नहीं, लेकिन वो फिल कैसे, उसको कैसे पता चलेगा किस पोर्ट पे कौन है,
लेवल लगा दे V2 का। इसका नहीं पूछो, सिंपल पहले पुराना वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो कि स्विच अपना मैक स्टेबल कैसे फिल कर। हाँ मतलब जो भी फ्रेम आएगा डेस्टिनेशन बाद में देखेगा, पहले सोर्स मैक देखता है। और उसको फ्रेम कहाँ से आया, लेट्स से मान लो उसको 3 नंबर पोर्ट से फ्रेम आया, वो देखेगा 3 नंबर पोर्ट पे जो फ्रेम है उसका सोर्स मैक क्या है, सोर्स मैक डबल ए रहेगा, वो उस पोर्ट पे मैप करेगा, फिर डेस्टिनेशन देख के कहाँ पे फॉरवर्ड करना है वो चेक करेगा। तो इसका मतलब हर बार जब स्विच के पास फ्रेम आता है वो सबसे पहले फ्रेम का सोर्स मैक देखता है, वो पोर्ट पे एंट्री है या नहीं, पहले एंट्री करेगा फिर डेस्टिनेशन देख के फॉरवर्ड करेगा। अगर एंट्री है तो भी देखेगा, ऐसा नहीं कि अभी एक बार हम लोग डिस्कस किया था ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वो डिवाइस किसी ने डिस्कनेक्ट किया दूसरा डिवाइस लगा, तो स्विच का जो मैक एड्रेस टेबल है वो परमानेंट नहीं है, कितने मिनट तक वो एंट्री रहता है, 5 मिनट। ठीक है। सो ये टेबल कैसे फिल हुआ, जब भी कोई फ्रेम आएगा फ्रेम का सोर्स मैक देखेगा, वो पोर्ट पे एंट्री है कि नहीं देखेगा, एंट्री नहीं है तो एंट्री करेगा, फिर डेस्टिनेशन देख के फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेगा। ठीक है। ठीक है। तो उसी प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सोचो कि स्विच को ये कैसे पता चला कि 3 नंबर पोर्ट के थ्रू ही कुछ ऐसे डिवाइसेस है जो VLAN 2 के है, तो आई नीड टू सेंड द फ्रेम वाया पोर्ट नंबर 3 एज वेल, ये ट्रंक के थ्रू मुझे सेंड करने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट स्विच को कैसे पता चला। नहीं वो 3 नंबर पोर्ट ट्रंक है, वो VLAN का मेंबर नहीं है, वो ट्रंक है ना, तो वो कोई स्पेसिफिक किसी एक VLAN का मेंबर नहीं होगा, वो ट्रंक है। तो स्विच ने ये फाइंड आउट किया, चलो 7 नंबर पोर्ट पे फ्रेम आया, स्विच ने ये सोचा ठीक है 7 नंबर पोर्ट पे कौन आया, ट्रिपल ए आया, 7 नंबर पोर्ट किस VLAN का मेंबर है, 2, तो ये फ्रेम आने वाला फ्रेम VLAN 2 का ही है, एज्यूम किया। फिर उसने डेस्टिनेशन देखा ब्रॉडकास्ट, उसने चेक किया मेरे और कौन से पोर्ट है VLAN 2 में, 8 और 9 भी, उनको भी सेंड किया। लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे 3 नंबर पोर्ट के थ्रू भी आगे कुछ तो है जो भी VLAN 2 में, तभी उनको भी जाएगा। तो उसको ये कैसे पता चला कि 1 नंबर पोर्ट के सेंड करने का कोई मतलब नहीं है, वहां पे आगे कोई VLAN 2 है नहीं, 3 नंबर पोर्ट पे सेंड करो तो ये आगे VLAN 2 के बंदे बैठे, तो ये स्विच को कैसे पता चला। जब वो फ्रेंड सेंड करेगा पोर्ट नंबर 3 से, तो इसके पास भी तो मैक एड्रेस होगा, पोर्ट के पास वो ये स्विच के पास भी तो उससे मैक एड्रेस होगा, उसमें भी मैक एड्रेस टेबल में क्या होगा, जैसे इधर की स्विच में वो इधर का मतलब कौन सा, फर्स्ट स्विच में जो है, जो मैक एड्रेस टेबल ट्रिपल ए है, हाँ और उसका 7 पोर्ट में V2 है और 8 9 में भी V2 है, इसको पता है, तो ये स्विच को भी तो पता होगा ना कि इस पे कौन से पोर्ट में V2 कनेक्टेड है, ठीक उसके है। पास भी। ठीक है, इसको पता है अपना 11 नंबर और 12 नंबर पोर्ट V2, ठीक है। नहीं नहीं इसको पता है, लेकिन इसको कैसे पता चला 3 नंबर पोर्ट के थ्रू सेंड करना है, इसको अपना पोर्ट पता है ना। क्वेश्चन क्या है कि ए स्विच को कैसे पता चला, देखो इसको यहाँ पे एक स्विच हो सकता है, 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 यहाँ पे V2 है, V3 है, V4 है, यहाँ पे V3 V4, यहाँ पे V3 V6, यहाँ पे V2 V4। तो अब यहाँ पे जो बंदा V2 वाला बैठा है वो अगर ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहा है तो V2 मतलब यहाँ पे भी है, यहाँ पे राइट, बाकी किधर है नहीं। तो ये स्विच जब रिसीव करेगा, ये स्विच को कैसे पता चला, चलो ये तो एक ही पोर्ट है, ठीक है, इसने रिसीव किया ये स्विच ने, इसको कैसे पता चलेगा कि मेरे ये पोर्ट को सेंड नहीं करना है, मेरे ये पोर्ट को सेंड नहीं करना है, ये पोर्ट पे ही सेंड, ये स्विच को कैसे पता चलेगा। इसको तुम लोग बोल सकते हो वैसे भी एक ट्रंक लिंक है, लेकिन इसको तो 4 है, तो इसको ये कैसे पता चलता है इससे सेंड करने का मतलब नहीं, इधर सेंड करने का मतलब नहीं, इधर ही करना होगा। तो पहले उसने उधर सेंड किया होगा तो उधर से पैकेट रिसीव नहीं आया, रिपीट नहीं आया, तो फिर उधर तो कोई नहीं, इसलिए रिपीट नहीं आया, रिवर्स नहीं आया पैकेट, इससे उसको पता चला। ठीक है, ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत है, और थोड़ा सोचो।
इसलिए पहले मैंने क्या एक्सप्लेन किया, स्विच मैक एड्रेस टेबल कैसे फिल करते, उसी डायरेक्शन में थोड़ा सोचो ना। और उधर फिर वैसा मतलब नहीं ना। उधर से पैकेट पूरे आए तो उसमें किधर भी वे टू वैन नहीं मिला, हाँ, उसके वजह से उसको पता चला कि उधर कोई भी वे टू वैन नहीं। बस आ गया। ये ट्रंक लिंक से जो भी आएगा जाएगा वो क्या होगा, विथ लेबल होगा। अभी स्विच क्या करता है, ट्रंक पोर्ट पे जो भी आ रहा है, ट्रंक पोर्ट हो या एक्सेस पोर्ट, एक्सेस पोर्ट पे क्या करता है स्विच, मैक एड्रेस देखता है, सोर्स मैक, उसकी एंट्री करेगा। उसके पास आने वाला फ्रेम विथ लेबल होता है, पीसी के थ्रू जब फ्रेम आ रहा है, एक्सेस पोर्ट पे जब फ्रेम आ रहा है तो विथ लेबल होता है नहीं। इसलिए वो एज्यूम करता है कि मेरा 2 नंबर का पोर्ट पे एक फ्रेम आया, 2 नंबर पोर्ट VLAN 3 में है, इसीलिए वो फ्रेम VLAN 3 का है। लेकिन ट्रंक के थ्रू जो भी फ्रेम जा रहा है वो विथ लेबल जा रहा है। ट्रंक पोर्ट पे जो भी फ्रेम आ रहा है वो विथ लेबल आ रहा है। वो विथ लेबल आ रहा है। तो ये पोर्ट पे कैसे होगा, इनिशियली सबसे पहले क्या होगा, वापस बेसिक से जाते हैं, दिस इज ट्रिपल ए, ठीक है। he generates a frame who wants to communicate with everyone, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले कुछ भी नहीं होगा, मैक एड्रेस टेबल पूरा ब्लैंक होगा, इसका भी और उसका भी। पहली बार कोई तो कम्युनिकेशन करना है। he generates a frame with a source of, he says, ये डेस्टिनेशन है ना, इसका आईपी क्या होगा, लेट्स से 1.10 और इसका आईपी होगा 1.20। सबसे पहले क्या होगा, is the destination part of my network, yes, एक ही है 1.10 1.20, नहीं स्विच नहीं, 1.10 1.20 इसलिए यस। अगर VLAN, अगर तुम लोग अलग नेटवर्क यूज करो तो नो बोलेगा, तो राउटर लगेगा। सो इज द डेस्टिनेशन पार्ट ऑफ माय नेटवर्क, यस। डू आई नो द डेस्टिनेशन मैक, नो। तो ये क्या करेगा, ये एक पैकेट बनाएगा जिसका सोर्स 1.10, डेस्टिनेशन 1.20, उसको रैप करके आर्क फ्रेम बनाएगा जिसका सोर्सेस डबल ए, एंड स्विच ने क्या किया, डेस्टिनेशन आर पे ब्रॉडकास्ट में। ये पोर्ट 1 नंबर पोर्ट पे रिसीव हुआ, स्विच क्या चेक करेगा, कौन आया मेरे पास, आर रिक्वेस्ट में ब्रॉडकास्ट है, तो ये सबको सेंड करेगा जो भी इसको कनेक्ट है, ठीक है, सबको सेंड करेगा। इसको गया इधर, अगर कुछ है तो इधर भी गया, इधर भी गया, ठीक है, यहाँ पे भी गया, ठीक है। अब ये सभी लोग देखेंगे कौन आया मेरे पास, आर पाया, मतलब किसी को तो मेरा मैक चाहिए। लेकिन कौन रिप्लाई देगा, हर एक पीसी क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम अनरैप करके अपने पास रखेगा, पैकेट नेटवर्क लेयर पे भेजेगा, पैकेट नेटवर्क लेयर पे खोल के पैकेट देखेगा, नेटवर्क लेयर को पता चलेगा डेस्टिनेशन क्या 1.20, इसका 1.20 है नहीं तो ये रिप्लाई नहीं देगा, इसका 1.20 है नहीं तो ये रिप्लाई नहीं देगा, इसका 1.20 है ना, ब्रॉडकास्ट था तो इधर भी गया ना, तो यहां तक भी जाएगा, इसको भी गया था, इसको भी गया था, इसको भी गया था, ये बंदा देगा रिप्लाई। जब ये रिप्लाई देगा तब जो सोर्स है वो खुद का मैक रहेगा अभी, और डेस्टिनेशन इसका रहेगा, ठीक है। वापस 2 मिनट पीछे आते हैं, इज द डेस्टिनेशन पार्ट ऑफ माई नेटवर्क, यस। डू आई नो द डेस्टिनेशन पार्ट ऑफ माई नेटवर्क, क्योंकि आईपी। डू आई नो द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, नो। वापस पीछे है ना हम लोग, नो। तो उसने 8 सेंड किया, 8 सबसे पहले कहां पे हिट हुआ, ये पोर्ट। स्विच क्या करता है, पहले यहाँ पे एंट्री किया, कौन आया मेरे पास, ट्रिपल ए, पहले आपने 1 नंबर पोर्ट पे एंट्री किया, अब देखेगा क्या है, आर पे ब्रॉडकास्ट करना है, सबको ब्रॉडकास्ट करना, इस पोर्ट के थ्रू बाहर गया वो, ठीक है, इस पोर्ट पे हिट हुआ,
इसने क्या किया, मेरे पास एक फ्रेम आया, सोर्स मैक क्या है, पहले इसने भी एक पोर्ट पे एंट्री किया, ठीक है। स्विच का काम भले वो मेरा स्विच हो या तेरा स्विच हो, उसके पोर्ट के पास कुछ आ रहा है तो सबसे पहले वो सोर्स मैक देखेगा और अपने पोर्ट पे एंट्री करेगा, भले वो ट्रंक हो या एक्सेस, ठीक है। तो जाते वक्त ये पोर्ट का अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ आप अभी तक पहुंचा है। फिर ये डेस्टिनेशन देखेगा, ब्रॉडकास्ट इसने सभी को सेंड किया, रिप्लाई ये देगा क्योंकि इसका आईपी मैच होगा। ये जब रिप्लाई देगा तो इसका रिप्लाई पैकेट नीचे से आएगा ना, ये 6 नंबर पोर्ट पे हिट हुआ, तो 6 नंबर पोर्ट पे इसके मैक एड्रेस टेबल पे 6 नंबर पोर्ट पे ट्रिपल बी का एंट्री हुआ, ठीक है। अब तो डेस्टिनेशन क्लियर कट पता है तुम्हारा, ये ट्रिपल ए, तो ट्रिपल ए का किधर, यहाँ पे एंट्री है ना, यहाँ पे एंट्री था ना, तो यहाँ पे इसको ऑर्बिट साइड ट्रंक हो सकता है, वो यहीं पे सेंड करेगा क्योंकि ये पोर्ट पे ट्रिपल ए के आते हो एंट्री हुआ था, ठीक है। अभी जब ये वहां पे आएगा तब ये पोर्ट पे हिट होगा, ठीक है। ये पोर्ट पे जब फ्रेम आया तब विद लेबल आया, फ्रेम में क्या था, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक और तुम्हारा 2 वीलैन टैग। तो यहाँ पे एंट्री क्या हुआ, वीलैन 2 का एक फ्रेम है जो सोर्स मैक यहाँ पे देखेगा ना, आते वक्त फ्रेम आया 2 नंबर पोर्ट पे हिट हुआ ट्रिपल बी, और फिर यहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। अभी वापस जब दूसरी बार कम्युनिकेट हो रहा है, वापस इज द डेस्टिनेशन पार्ट ऑफ माय नेटवर्क, यस, डू आई नो द डेस्टिनेशन मैक, इसके आप टेबल में होगा ना 1.20 का ट्रिपल बी, बोलेगा यस, तो फ्रेम ज्वाइन करेगा विद ट्रिपल ए एज ए सोर्स, ट्रिपल बी एज ए डेस्टिनेशन। स्विच के पास आएगा 1 नंबर पोर्ट पे, वापस वो देखेगा सोर्स मैक कौन आया, ट्रिपल ए, वो 1 नंबर पोर्ट पे एंट्री है एंट्री, डेस्टिनेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट है, डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट है। तो वो क्या करेगा कि, लेकिन ये फ्रेम वीलैन 2 का ब्रॉडकास्ट है, तो उसने क्या दिया कि इसको और भी तो ट्रंक पोर्ट हो सकता है, यहां से वीलैन 2 का कोई भी टैग आएगा क्या, अगर वीलैन 2 का यहाँ पे कोई यूजर नहीं है तो इस पोर्ट पे कोई भी ऐसा टैग नहीं होगा वीलैन 2 का, इस पोर्ट पे था क्योंकि यह आया था। तो ट्रंक पोर्ट पे देखो, ये तुम्हारा एक्सेस पोर्ट है, यहाँ पे सिर्फ मैक का एंट्री होता है, ये पोर्ट तुम्हारा ट्रंक है, ये पोर्ट पे आने वाले डिवाइस का मैक और उसका वीलैन नंबर दोनों होता है ट्रंक पोर्ट। इस पे सिर्फ सोर्स, इस पे सिर्फ मैक क्यों था, इस पे वीलैन नंबर का एंट्री क्यों नहीं था, क्योंकि आने वाले फ्रेम में टैग नहीं होता ना, एक्सेस पोर्ट से फ्रेम आ रहा है, उसके पास कौन सा टैग होता है, अगर उसके पास टैग होता, और वैसे भी उसको जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया हुआ है हमने, ये तो वीलैन 2 का है, ये वीलैन 2 का नहीं है, ये ट्रंक है। तो इसको कैसे पता चलेगा, तो ये आने वाला जो फ्रेम है उसका वो टैग देखता है, कौन आया मेरे पास, क्या सोर्स था, ट्रिपल बी एंट्री करेगा, तो सिर्फ सोर्स मैक का एंट्री नहीं करेगा, लेबल भी तो है, तो वो किस वीलैन का है, वीलैन 2, तो मैक एड्रेस टेबल में अभी क्या होगा, ये अगर तुम्हारा स्विच है और ये ट्रंक है और बहुत सारे उसके एक्सेस पोर्ट है, तो ये 1 नंबर पोर्ट, 2 नंबर पोर्ट, 3 नंबर पोर्ट, इस पे क्या होगा, लेकिन ये जो है ना, मान लो 4 नंबर का पोर्ट है, इस पे ये नंबर आएगा जो भी इधर से आ रहा है ना उसके पास, वीलैन 2 के 3 के, तो उसका मैक भी आ रहा है, तो मान लो XYZ आया, उसका उसका वीलैन क्या, मान लो ABC आया, उसका वीलैन क्या, तो ये पोर्ट पे मल्टीपल वीलैन का एंट्री होगा। तो मैक एड्रेस टेबल में तुम्हें एक पोर्ट पे एक मैक एड्रेस की एंट्री दिखेगी, लेकिन ऐसा पोर्ट हो सकता है जिसमें तुम्हें मल्टीपल मैक एड्रेस की एंट्री दिख रही है, तो समझ जाने का वो ट्रंक पोर्ट है।
कहाँ लगा? हाँ कहाँ लगा नहीं लगा? हाँ तो में आया या नहीं? हम्म, देखो हम लोग क्या करते हैं, ये स्विच को तीन पीसी ऐड करते हैं। दिस इज पोर्ट नंबर 17, पोर्ट नंबर 15 एंड पोर्ट नंबर 14। हमने दो विलन क्रिएट किए, विलन 2 और विलन 3, ठीक है। तो ये तीनों पोर्ट को, किसी दो पोर्ट को एक विलन में डालेंगे, दूसरे पोर्ट को दूसरे विलन में डालेंगे। इंटरफेस F0/17, ध्यान दो, इंटरफेस F0/17, ठीक है। 17 नंबर पोर्ट को हम डालेंगे VLAN 2 में, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, ठीक है। 15 नंबर पोर्ट को भी VLAN 2 में डालेंगे, ये दोनों पीसी जो है ना ये वाला, ठीक है। ऊपर वाले को 3 में डाल दो, ठीक है। तो विलन करके देखो, VLAN 2 के सामने कौन है? 15 17 और 14 नंबर पोर्ट 3 पे, ठीक है। इसको भी आईपी देते हैं, इसको देते हैं लेट्स से 1.50 1.51 1.52, ठीक है। पहले पीसीओ क्लिक किए 192.168.1.50, इसको दिया 192.168.1.51 और इसको दिया 52, 192.168.1.52, ठीक है। अभी हम लोग यहां से ये सभी को पिंग करते हैं। ये पीसी विलन मेरे ख्याल से 2 में है और ये 3 में है, ठीक है। So from this, let's try to ping the neighbor who is also member of same VLAN. तो 50 और 51 सेम VLAN है ना, तो ये 50, ये 51। हम लोग कहाँ से पिंग कर रहे हैं? पहला पीसी पहले स्विच पे और दूसरा पीसी दूसरे स्विच पे। 52 होगा नहीं क्योंकि उसका VLAN नंबर और मेरे VLAN नंबर अलग है, ठीक है। लेकिन यहां से होगा, तो हम लोग यहां से पिंग करते हैं क्योंकि ये VLAN 3 और ये VLAN 3, ठीक है। तो इससे पिंग करते हैं 192.168 192.168.1.52, ठीक है। तो ये पिंग हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या इसके मैक एड्रेस टेबल देखेंगे। यहां से रिप्लाई आया होगा, ये दोनों से, ये तीनों से यहाँ पे रिप्लाई आके 16 नंबर पोर्ट पे हिट हुआ होगा। तो 16 नंबर पोर्ट पे इनका मैक भी दिखना चाहिए तीनों का, और VLAN का नंबर भी दिखना चाहिए। लेकिन ये जो दो पोर्ट है, इस पे एक ही मैक, इस पे एक मैक दिखेगा, इस पे एक मैक दिखेगा, ठीक है। तो मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल के बीच में हाइफन है, मैक और एड्रेस सेपरेट है। देखो ये 16 नंबर पोर्ट है, इसके आगे 3 एंट्रीज है। एक पोर्ट के आगे अगर वो एक्सेस पोर्ट है तो उसके आगे एक ही मैक का एंट्री होगा, क्योंकि उसको एक ही कोई तो डिवाइस कनेक्ट हो सकता है, एक्सेस पोर्ट है वो। लेकिन ये समझ जाने का कि अगर 16 नंबर पोर्ट के आगे मुझे मल्टीपल मैक एड्रेस दिख रहे हैं, इसका मतलब वो जरूर ट्रम्प होगा। तो ये 16 नंबर का पोर्ट देखो, इसके पास
कितने मैक एड्रेस एंट्रीज है? ये 1 2 3 और ये 4। देखो ये VLAN 3 का है और ये बाकी के जो है वो VLAN 2 के। मतलब ये 2 का एंट्री मिला, ये 3 का एंट्री मिला। इसका 16 नंबर, इसका अगर ये स्विच का, ये 1 नंबर स्विच है, सॉरी दूसरा नंबर स्विच है, इसका 1 नंबर पोर्ट पे क्या क्या रहेगा? इसके पास कौन कौन आया? यहाँ से भी हमने पिंग किया, उसका ट्रैफिक भी ऐसे आया होगा। यहाँ से हमने पिंग किया, इसका ट्रैफिक भी ऐसे होगा। तो 1 नंबर पोर्ट पे ये दोनों का एंट्री मिलना चाहिए। हम लोग सेकंड स्विच पे जाते हैं और VLAN नंबर का इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो सेकंड स्विच तो मैट एड्रेस टेप्स 16 18 15 कितने 16 14 पे कौन है? 1 नंबर पोर्ट पे ये एक है, क्या क्या कौन सा है? नहीं ये 18 नंबर पोर्ट है, ये जो है ना 18 नंबर का पोर्ट। सो 18 नंबर पोर्ट पे ये इतने एंट्रीज तुम्हें मिल रहे हैं। और उसका VLAN नंबर, तो स्विच को पता होता है कि मेरे किस पोर्ट से क्या आया और वो किस VLAN का है। क्यों? क्योंकि ट्रंक के थ्रू विद लेबल आया। एक्सेस पोर्ट के थ्रू जब फ्रेम आता है तो विदाउट अ लेबल आता है, इसलिए वो एज्यूम करता है क्योंकि उसका पोर्ट कॉन्फ़िगर्ड है उस VLAN में। लेकिन ट्रंक पोर्ट के थ्रू जो भी फ्रेम आएगा वो विद लेबल आएगा, इसलिए वो सिर्फ सोर्स मैक रजिस्टर नहीं करता, वो किस VLAN का है वो भी रजिस्टर करता है। क्यों? बाद में कम्युनिकेशन के लिए सिंपल होगा। तो VLAN 3 ये इसका ट्रैफिक कभी तो ऐसा आया होगा इस साइड, तो ये पोर्ट पे एंट्री रहेगा ना VLAN 3 का जो भी है, ए और बी, ए 3 में है, बी 3 में है। तो जब ये अगर ये ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको पता है कि 3 नंबर पोर्ट के थ्रू 2 3 लोग हैं, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। इस डायरेक्शन में कभी भी उसको फ्रेम ऐसा आएगा नहीं जो 3 का लेबल लेके आए। वो इधर इसके पास जो भी एंट्री मिलेगा वो इधर 2 का लेबल रहेगा या 4 का लेबल रहेगा ये पोर्ट पे। तो उसको पता चलता है कि दिस पोर्ट हैज सम डिवाइसेस विच आर मेंबर ऑफ VLAN 3, तो ब्रॉडकास्ट करेगा तो यहां से जाएगा, यहां से नहीं जाएगा। क्लियर है? हम्म। तो ये तुम्हें पूछ सकते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज टेकन केयर बाय encapsulation protocol, which is ISL from Cisco and 802.1q from IEEE। तो ISL से Cisco डिवाइस पे चलेगा एंड 802.1q यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। अगेन ये प्रोटोकॉल हमें कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन पता होना चाहिए कैसे बनता है। ठीक है।
ठीक है, आगे जाए। अभी ये 1.0 और 2.0 के बीच में कम्युनिकेशन करना, कैसे करो? 1.0 और 2.0 के बीच में कम्युनिकेशन करना, कैसे करोगे? क्या करोगे? और हर किसी को नहीं पसंद। पहले राउटर को आईपी तो दो, इसको क्या दोगे? 3.1 हाँ 3.8 ठीक है, इधर इधर इसी नेटवर्क का एक आईपी यहाँ पे होगा ना। हाँ, तो क्या दोगे? 1.1। इसको क्या दोगे? और अब पीसी को आईपी दोगे, और क्या दोगे? किसी को गेटवे ये दोगे। हाँ मतलब मान लो इसको 1.10 है तो गेटवे 1.1 है, इसका 1.20 है तो गेटवे 1.1। इनका सेम केस कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अभी ये 3 विलन के बीच में कम्युनिकेशन करना है। 3 विलन मतलब 3 अलग नेटवर्क। ये भी सेम कंसेप्ट है, लेकिन ये फिजिकली दो अलग, ये वर्चुअली दो अलग। फिजिकल 2 नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, राउटर लगेगा। ये भी 3 अलग नेटवर्क, लेकिन वर्चुअल है, लेकिन है तो अलग। तो ये 3 के बीच में कम्युनिकेशन करना है। अभी तक तो नहीं हो रहा था ना, लेकिन अभी करना है। कंपनी चाहता है कि प्रोडक्शन और एचआर के बीच में शेयरिंग हो। तीनों विलन अलग है ना, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा ना उसका। शिवसेना तर माहिती आहे कोणत्या कोणत्या विज्ञान आहे जॉईन वीटूला बोलो। तीन अलग अलग विलन में कम्युनिकेशन करना है, कल बोला था ना। कैसे करना है वो नहीं बोला था, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं? इंटर विलन। तो इंटर विलन के क्या लगेगा? 2 अलग नेटवर्क है, तो ये क्यों एक्सप्लेन किया है? 2 अलग नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो राउटर लगता ही है। तो भले 2 फिजिकल हो या 2 वर्चुअल हो, बिना राउटर का इंटर विलन नहीं हो सकता। वी छोड़ो, लाइन अलग है, तो 2 फिजिकल नेटवर्क हो या 2 वर्चुअल नेटवर्क हो, बिना राउटर का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो राउटर, तो यहाँ पे एक नेटवर्क का ध्यान दो, यहाँ पे एक नेटवर्क ये पोर्ट पे कनेक्ट किया, दूसरा नेटवर्क ये पोर्ट पे कनेक्ट किया। तो ये कैसे करोगे? अभी 3 विलन है तो ये 3 केबल डालोगे, एक ही रहेगा। ठीक है, ये लेट से पोर्ट नंबर 5 ये 0/1।
तो ये एक ही केबल के थ्रू, मतलब ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, केबल वही है। लेकिन फिर यहाँ पे कैसे किया था तुमने, एक अलग नेटवर्क का एक आईपी राउटर के एक पोर्ट, एंड दिस आईपी इज एक्टिंग एज ए गेटवे टू योर सिस्टम्स। ये पोर्ट पे इस नेटवर्क का आईपी, और ये आईपी तुम्हारे पीसी को गेटवे, ठीक है। अब ये सभी का आईपी क्या दिया तुमने, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, तो ये एक ही नेटवर्क हुआ, ठीक है। ये एक नेटवर्क का, जैसे ये एक नेटवर्क है, इसका अपना एक पोर्ट है राउटर पे, ये दूसरा नेटवर्क है, दूसरे नेटवर्क का पोर्ट है राउटर पे, बराबर। तो वैसे VLAN 2 एक नेटवर्क है, इसका पोर्ट राउटर पे होना चाहिए। VLAN 3 एक नेटवर्क, इसका पोर्ट राउटर पे होना चाहिए, उसको आईपी होना चाहिए जो इसके नेटवर्क का हो। VLAN 4 का एक पोर्ट होना चाहिए राउटर पे, जिसको आईपी हो वो VLAN 4 के नेटवर्क का हो, और VLAN 3 का एक पोर्ट होना चाहिए राउटर पे, जिसको एक आईपी हो वो VLAN 3 के नेटवर्क का हो। जैसे यहाँ पे सेम यहाँ पे होना चाहिए। तुम लोग डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो तुमने राउटर लिया, ये दो ऐसे कनेक्ट किए, ये 1.0, ये 2.0, टू डिफरेंट फिजिकल नेटवर्क्स connected to two different ports on router. Every port will have an IP, लेकिन किसका, उसी नेटवर्क के अंदर का। तो ये रूल तो यहां पे भी अप्लाई होता है। फिर दो ही लेते, चलो दो VLAN है, दो VLAN के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो राउटर लगता है, ये क्लियर हुआ। लेकिन इसका पोर्ट राउटर पे होना चाहिए, इसका पोर्ट राउटर पे होना चाहिए, इसका पोर्ट VLAN 2 का पोर्ट जो राउटर पे है उसको आईपी होना चाहिए, वो आईपी इनका गेटवे होना चाहिए। VLAN 3 का पोर्ट राउटर पे होना चाहिए, उसको जो आईपी होगा वो इनको गेटवे होना चाहिए, सेम एज इट इज, बराबर ना। लेकिन ये पोर्ट तो फिजिकल, यहाँ पे थोड़ी तुम लोग दो केबल डालोगे। तो वैसे अगर 10 VLAN के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो राउटर स्विच में 10 केबल थोड़ी डालोगे। तो ये फिजिकल पोर्ट को अलग अलग सब पोर्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने सब पोर्ट्स, कितने VLANs है उतने। इफ यू वांट टू क्रिएट अ कम्युनिकेशन विद इन 2 VLANs, डिवाइड दिस पोर्ट, ये जो भी पोर्ट होगा ना, लेट्स से 0/1, डिवाइड दिस पोर्ट इनटू 2 सब पोर्ट्स। एक सब पोर्ट VLAN 2 के लिए दो, एक सब पोर्ट VLAN 3 के लिए दो। जो सब पोर्ट VLAN 2 के लिए दिया है उसको एक आईपी दो, वो आईपी VLAN 2 के लोगों का गेटवे होगा। एक सब पोर्ट VLAN 3 के लिए जो क्रिएट किया उसको एक आईपी दो, वो VLAN 3 के लोगों के लिए गेटवे होगा। सेम इसके जैसा ही करना है। यहाँ पे फिजिकल था इसलिए अलग फिजिकल पोर्ट मिल रहा था, उसको तुम लोग अलग आईपी दे रहे थे, और ये आईपी इनको गेटवे एक्ट हो रहा था। रूल्स रिमेन्स द सेम। यहाँ पे सब कुछ फिजिकल अलग अलग था, यहाँ पे वर्चुअल है तो वर्चुअली अलग अलग करना होगा। केबल तो यही है, पोर्ट तो यही एक पोर्ट है, इसी पोर्ट से ट्रैफिक जाएगा, लेकिन इस पोर्ट को दो सब पोर्ट्स में डिवाइड करना होगा। क्यों दो, क्योंकि दो VLAN है। अगर 10 VLAN के बीच में कम्युनिकेशन करना है, दिस मेन इंटरफेस नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू 10 सब इंटरफेसेस, और हर एक सब इंटरफेस एक एक VLAN को डेडिकेट करना होगा, और हर एक सब इंटरफेस को आईपी रहेगा। कौन सा आईपी, वो जिस VLAN में है उस नेटवर्क का एक आईपी, और वो आईपी उनको गेटवे होगा। क्लियर है। तो यू हैव अ राउटर, यू हैव अ स्विच, दो ही VLAN लेते हैं, सिंपल रखते हैं, P2 P3, ठीक है। इसको आईपी क्या दिया था पहले, 1.1, पीसी को 1.2, ये 1.3, 1.4। VLAN का ऐसे ही प्रैक्टिकल किया तुमने, आइसोलेट हुआ क्योंकि VLAN नंबर अलग था। आईपी एक ही नेटवर्क का लिया ना अभी तक, आईपी हमने आईपी नेटवर्क अलग अलग नहीं दिया, हर एक VLAN को अलग नेटवर्क नहीं दिया। आईपी एक ही नेटवर्क का था लेकिन VLAN अलग था, इसलिए पिंग नहीं हो रहा। तो पोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4,
कितने VLAN के बीच में कम्युनिकेशन करना है? 2। कितने सब इंटरफेस राउटर पे बनाने होंगे? जितने VLAN, क्योंकि एक VLAN का अपना इंटरफेस, खुद का अपना इंटरफेस ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा 0/0 पे। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन तुमने पहले ही किया है। VLAN, इस पे VLAN क्रिएट करोगे, VLAN 2 नेम, VLAN 3 नेम, इसका 1 नंबर पोर्ट, 2 नंबर पोर्ट VLAN 2 में डालोगे, 3 नंबर पोर्ट, 4 नंबर पोर्ट VLAN 3 में डालोगे, और यहाँ से इनके बीच में पिंग होगा, यहाँ से इनके बीच में पिंग होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये तो तुमने किया है 2-3 बार, लेकिन अभी चाहिए कि इनके बीच में होना चाहिए, तो वो करना है तुम्हें इंटर VLAN। तो इंटर VLAN मतलब करना है, मतलब 2 नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना है। 2 नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो ये नेटवर्क का एक अपना पोर्ट राउटर पे होना चाहिए, ये नेटवर्क का अपना पोर्ट एक राउटर पे होना चाहिए, ये पोर्ट को एक आईपी होना चाहिए, वो आईपी इनका गेटवे होगा, ये पोर्ट को जो भी आईपी होगा वो इनका गेटवे होगा। बराबर ना? तो रूल तो सेम ही है। तो यहाँ पे वर्चुअल है, तो वर्चुअली बनाओ। तो ये जो मेन इंटरफेस है राउटर पे, इसको पहले अप करो। ठीक है, अब इसका सब इंटरफेस बनाओ, इस पे सब पोर्ट सब इंटरफेस। तो ये इंटरफेस FA 0/0, बाद में लिख 0/0.2, और एक सब इंटरफेस बनाओ, इंटरफेस FA 0/0.3। देखो ये मैंने सेम रखा है, क्यों? इसी को डिवाइड करके बनाओगे ना, तो ये कैसे चेंज हो? 0/0.2 और 0/1.2 1 है कि किधर इधर? ये जो पोर्ट है, मेन पोर्ट जो नीचे कनेक्ट हुआ है, उसी पोर्ट को डिवाइड करके बनाओगे ना, तो ये तो सेम ही रहेगा। तुम लोग जब डॉट देते हो तो वो सब इंटरफेस बनता है। अब ये 2 और ये 3 क्यों? दिस 2 जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी आई हैव टेकन एज VLAN नंबर। ये 2 मतलब VLAN नंबर नहीं, ये 2 मतलब VLAN नंबर नहीं, लेकिन सब इंटरफेस क्रिएट करना है, इसका मतलब एक्सटेंशन देना होता है 0.0/0 समथिंग। अगर तुम लोग सिर्फ 0/0 दे रहे हो ऐसे ऊपर, तो ये मेन पोर्ट हुआ, इसको डिवाइड करोगे तो 0/0.1, .2, .3, .4, ऐसे जितने चाहो उतने सब इंटरफेस बनाओ, .1000 तक, या जितने भी बना सकते हो उतने बनाओ, इतने सारे सब इंटरफेस बनाओ। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सिंपल रखा, 0/0.2 लिया, 0/0.3 लिया, लेकिन ये 2 मतलब ये VLAN 2 के लिए है, ये 3 मतलब ये VLAN 3 के लिए, ऐसा नहीं। अभी तक हमने इसको बताया नहीं ये सब इंटरफेस को तो किस VLAN का है, वो कमांड आगे है। हमने सिर्फ पहले 2 सब इंटरफेस क्रिएट किए, 0/0.2 और 0/0.3। 2 और 2, 2 और 3, ये सिर्फ मैंने इसलिए सिंपल रखा। यहाँ पे मैं 0/0.100, यहाँ पे 0/0.200 ले सकता था, लेकिन ये सिर्फ इसलिए लिया है समझने में कि ये हम लोग आगे जाके VLAN 2 को देंगे, और ये हम लोग आगे जाके VLAN 3 को देंगे। ठीक है, तो you have created 2 sub interface on router because one sub interface you want to dedicate to VLAN 2 people and one sub interface you want to give to VLAN 3 users. इसलिए 2 VLAN के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो 2 सब इंटरफेस बनेंगे, अगर 10 VLAN के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो 10 सब इंटरफेस बनेंगे। तो एक सब इंटरफेस बना है, अब इसको बताना होगा तो किस VLAN का मेंबर है, इसको हम लोग बताएंगे तो VLAN 2 का मेंबर। ठीक है, तो उसके लिए कमांड encapsulation .1q space 2, encapsulation .1q space 2, this 2 indicates VLAN number। तो ये जो भी सब इंटरफेस क्रिएट किया है, उसके अंदर जाने के बाद तुम लोग कमांड डालते हो encapsulation .1q space, अगर 4 डाला तो ये सब इंटरफेस VLAN 4 का मेंबर बने। यहाँ पे तुम लोग 10 डालते हो तो ये सब इंटरफेस VLAN 10 का मेंबर बने। ये डिफाइन नहीं करता VLAN नंबर, ये डिफाइन करता है VLAN नंबर, ये सब इंटरफेस किसका होगा। तो मैंने ये जो सब इंटरफेस क्रिएट किया, इसको हम लोग बोल रहे हैं encapsulation .1q space 2, मतलब ये जो भी 0/0.2 सब इंटरफेस क्रिएट किया है, इसको हम लोग कह रहे हैं 2 VLAN 2 का मेंबर होगा। ठीक है, इसको भी बताते हैं, ये भी जो सब इंटरफेस क्रिएट किया है encapsulation .1q space 3, तो ये सब इंटरफेस को हम लोग बोल रहे हैं 2 VLAN 3 का मेंबर है।
ठीक है, अब इनको आईपी भी देना है। हमने क्या डिस्कस किया, जो जितने नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना है, इसका अपना खुद का एक इंटरफेस होना चाहिए राउटर पे, इसका अपना एक इंटरफेस होना चाहिए राउटर पे, फिर इसको एक आईपी दोगे, इसको एक आईपी दोगे, इसका आईपी इनको गेटवे होगा और इसका आईपी इनको गेटवे होगा। तो दो विलन के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो दो सब इंटरफेस क्रिएट किए, दोनों को पता है कि तू किस विलन का है, तू किस विलन का है। अब दोनों का आईपी भी देना है, और जो आईपी विलन 2 को दोगे वो विलन 2 के लोगों के लिए गेटवे होगा, जो आईपी विलन 3 के सब इंटरफेस को दोगे वो विलन 3 के लोगों के लिए गेटवे होगा। तो विलन 2 के लिए कौन सा आईपी दोगे, जो सब इंटरफेस क्रिएट किया है वो, कोई भी एक आईपी बताओ। 1.0 नेटवर्क है, हाँ 1.1 तो दिया है ना यहाँ पे। ठीक है चलो, इसको देते हैं आईपी एड्रेस, कैसे देना आईपी एड्रेस कमांड। ठीक है, तो पूरा नहीं लिखता हूँ, लेट से 1.5 लिखता हूँ, और आगे सबनेट मास्क देना होगा ना, इसको क्या देना है दूसरे सब इंटरफेस को 1.6। ठीक है, अभी ये पोर्ट ट्रंक होना चाहिए स्विच का, क्योंकि इससे भी ट्रैफिक मल्टीपल विलन का जाएगा ना ऊपर, तो ये भी ट्रंक होना चाहिए। चलो इसको आईपी क्या दे सकते हो तुम, ये पोर्ट को 1. इसको मैंने इसको 1.2 दिया तो क्यों, तो रूल सेम है। यहाँ पे सब इंटरफेस बना है, सब इंटरफेस अलग है, यहाँ पे 1.5, ये इसको 1.6 लेगा ही नहीं। वो कहता है मेरे दो फिजिकल हो या नो वर्चुअल हो, मेरे दो वर्चुअल इंटरफेस तुमने क्रिएट किए, एक को 1.5 दे रहे हो, दूसरे को 1.6 दे रहे हो, कैसे पॉसिबल, मेरा अलग इंटरफेस है, तो अलग इंटरफेस मतलब अलग नेटवर्क का ही आईपी चाहिए। तो तुम लोग दोगे तो भी 1.6 लेगा नहीं, क्योंकि पहले 1.5 दिया हुआ है और 1.6 उसी नेटवर्क में। रूल सेम है इधर उधर, फिजिकल पोर्ट हो लॉजिकल पोर्ट हो, पोर्ट अलग है, खत्म, अलग आईपी चाहिए, अलग नेटवर्क। वापस थोड़ा लिखते हैं, (0/0) नो शट interface at 0/0 dot 2 encapsulation dot 1q space 2, this is VLAN number, right? थोड़ा स्पेस छोड़ता हूँ आईपी के लिए, दूसरा सब इंटरफेस लिखता हूँ, इंटरफेस at 0/0 dot 3 encapsulation dot 1q space 3, this is VLAN number। तो यहाँ पे मुझे एक आईपी देना है, इसको एक आईपी देना है, इसको क्या आईपी दोगे और इसको क्या आईपी दोगे। ठीक है, इसको एक आईपी दिया, आईपी एड्रेस 192.168. चलो चलो लिखता हूँ यहाँ, ठीक है, नीचे वाले को क्या दोगे, हाँ 2.5, ठीक है। तो मान लो तुम लोग बोल रहे हो यहाँ पे 2.5 हो, तो ये सब इंटरफेस किसके लिए बना हुआ है, ये सब इंटरफेस किसका है, VLAN 3। इनको आईपी क्या है और इनका गेटवे क्या है, तुम लोग बोल रहे हो इसको 2.5 देना है बराबर, तो इसको
पीसी का आईपी एक नेटवर्क और पीसी का गेटवे दूसरे नेटवर्क का नहीं हो सकता। हाँ, इसका मतलब क्या कि जब भी तुम लोग इंटर विलान करोगे, अलग विलान को अलग आईपी नेटवर्क देना होगा, क्योंकि यहाँ पे वो अगर राउटर अपने अलग पोर्ट का आईपी एक्सेप्ट करता सेम नेटवर्क का, तो नीचे प्रॉब्लम नहीं था। ये 1.0 और ये भी 1.0, ये रख भी सकते थे, लेकिन राउटर बोलता है कि ये पोर्ट को 1.1 तो ये पोर्ट को 1.2 तो दे ही नहीं सकता, ये दे नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे 2.0 लिया है। अगर राउटर बोलता 1.2 चलेगा मेरे ये पोर्ट को, तो तुम लोग यहाँ पे यही कंटिन्यू करते, यहाँ पे 50 आईपी यूज किए, यहाँ पे 1.51 से स्टार्ट करते आगे। भले यहाँ पे सिर्फ 10 यूजर्स है, लेकिन फिर भी 1.0 पूरा डेडिकेट करके दिया ना तुमने उसको। यहाँ पे उसका दूसरा नेटवर्क यूज करना ही, और क्यों यूज करना होगा, राउटर कहता है मेरा तुमने दूसरा पोर्ट यूज किया है, तो मुझे एक ही नेटवर्क का जो दूसरे वाले पोर्ट को यूज किया उसी नेटवर्क का आईपी तुम मुझे नहीं दे सकते दूसरे पोर्ट को, इसलिए यहाँ पे अलग नेटवर्क लेना होगा, इसलिए नीचे अलग नेटवर्क आया। तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई, इस सब इंटरफेस को तुम लोग अगर दे रहे हो लेट्स से 2.1 और ये तुम्हारा सबनेट मास्क आगे जो भी है वो, इसको दोगे तुम लोग, लेट्स से ये लिखते हैं हम लोग 2.5 और ये लिखते हैं 3. क्यों ये भी सिंपल रखा, 2 मतलब VLAN 2, जरूरी नहीं 3 लिया है, क्योंकि 3 मतलब VLAN 3, इसलिए सिंपल रखने के लिए नेटवर्क एड्रेस और VLAN नंबर सेम रखा है, अदरवाइज ये कुछ भी हो सकता। तो ये 2.5 तुम्हारी, मतलब ये जो भी सिस्टम्स है ये सभी को आईपी अभी क्या रहेगा, 2 डॉट का रहेगा, 2.1 2.3 2.5 नहीं रहेगा, क्योंकि 5 ऊपर यूज है, और 2.5 इनको गेटवे रहेगा। इन सभी यूजर्स को क्या होगा, 3 के रेंज का आईपी होगा, और इनका गेटवे 3.5 है, और ये पोर्ट को ट्रंक करो, हो जाएगा तुम्हारा कम्युनिकेशन। देखो अभी क्या लिखते हैं, रिकॉर्ड दे रहे ना सर, रिकॉर्ड है लेकिन एक तो देखो छोड़ ते तेच आहे की परत लिहिलंय मी, नाही तर फोटो काढ आणि ग्रुप वरती शेअर कर, तू जवळ बसताय का फोटो थांब ना, तो काढतोय ना, एकदा ग्रुप वरती आल्यावर सगळ्यांना मिळणार ना. हाँ, सबनेट मास्क अगर तुम लोग /24 ले रहे हो तो 255.255.255.0 ये करके देखते /26/20, पहले जैसे उसको नॉर्मल करो, फिर तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल तुम लोग करोगे। स्विच पे तो पहला कॉन्फ़िगरेशन तुमने किया ही है, 4 पीसी लो, 2 पीसी को एक विलान में रखो, 2 पीसी को एक विलान में रखो, पहला नेटवर्क एड्रेस सेम ही रखना सबका, 1.1 1.2 1.3 1.4 पिंग करो। 1.1 1.2 करेगा क्योंकि एक विलान में, 1.3 1.4 करेगा क्योंकि वो एक विलान में, लेकिन इधर के पीसी इधर के साथ नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा सिंपल विलान आइसोलेशन हो गया। अब तुम्हें चाहिए दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, तुम लोग ऊपर लगाओगे राउटर, तो राउटर नीचे कितने विलन के बीच में कम्युनिकेशन करना है, 2, तो राउटर पे जो फिजिकल पोर्ट है उसको डिवाइड करके 2 सब इंटरफेस बनाओगे, उसके पहले मेन फिजिकल इंटरफेस को अप करोगे नो शॉट करके राउटर पे, फिर 2 सब इंटरफेस बने 0/0.2 0/0.3। अब एक बार सब इंटरफेस क्रिएट करो तो उसी के अंदर जाके उसको वीलन और आईपी भी दे दो। मैंने पहला ये कमांड डाला, फिर ये डाला, बाद में फिर ये किया, वैसा मत करो। अगर तुम लोग जा रहे हो ना इंटरफेस FA0/0.2, तो उसी के अंदर जाके पहले उसको वीलन भी बताओ, उसको आईपी पे दे दो। तो इसको पता है वीलन 2 का मेंबर है, इसको आईपी दिया,
फिर दूसरा सब इंटरफेस क्रिएट किया, उसको पता है तू किस विलन का मेंबर है, उसको आईपी दिया। अब ये 2.5 3.5 यूज किया है, तो ये इंटरफेस विलन 2 का है, तो 2 के यूजर्स का अभी नेटवर्क एड्रेस भी चेंज होगा। पहले इसको 1.1 1.2 आईपी था, तो 1.1 1.2 आईपी और गेटवे 2.5 कैसे हो सकता है? तो गेटवे तो आईपी भी 2 के रेंज में आना चाहिए उसका, तो पीसी का आईपी भी 2.1 2.2 दो और गेटवे 2.5। इधर के जो दो पीसी है वो 1.3 1.4 था, तो उनका गेटवे 3.5 कैसे हो सकता है? तो इनका आईपी भी 3 के रेंज में लाओ, तो 3.1 3.2 और गेटवे 3.5। और ये मत भूलना इसको ट्रंक करते हैं, ये ट्रंक करो पिंग हो जाएगा, नहीं है तो कल देखेंगे। एक स्विच में अलग अलग नेटवर्क डालेंगे 1.0 2.0 करना ही होगा ना, क्योंकि राउटर आईपी एक नेटवर्क एक्सेप्ट नहीं करेगा अलग अलग। और ये मत बोल कमांड नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कैसा है? कमांड मिला नहीं मिला, गुगल पे सब कुछ मिळतं आहे। एक पिक्चर शोधायचं असेल तर 2 तास शोधा, पण हे कमांड असं नाही की तुम्हाला कुठे गुगल वरती मिळणार नाही। VLAN कॉन्फिगर कमांड मिळाले 50 डॉक्युमेंट येतील, पण यात काही जास्त असं काही नाही, एवढंच आहे। तरी पण समजा तुम्हाला वाटलं की बाबा हे लिहायला कळालं नाही, तर ते कमांड मिळेल तुम्हाला। त्यांच्याशी बोलतो ते कसं, हे प्रत्येकाचा ईमेल आयडी लागेल, पण ते प्रत्येकाच्या ईमेल आयडी तर ती लिंक देतील, मग तुम्हाला ते सगळे बघता येतील। मग तुम्ही काय करा, तुमच्यातला कोणतरी एक आहे ना, हो पण आता ते एकदा कन्फर्म तर करावं लागेल ना। ठीक आहे, थँक्यू. ते आणि ऍबसेंट राहायचं नाही। आज कोण राहिलं होतं ऍबसेंट? राहुल वरती बसलेला आहे बरोबर. दुसरं कोण होतं? शुभम आणि कोण? नाही ठीक आहे, त्याचा समजा तो ऍडमिट आहे तो ठीक आहे, बाकी हो पता नाही जात. इथं काय झालं? 14 15 16 अजून एक कोणतरी आपण बघत हा भागवत हा का हा ठीक। हे कसं आहे, ईमेल आयडी आहे ना, हे मायक्रोसॉफ्ट टीमच्या पोर्टलवरती आहे. ते सगळे लिंक देतील तुम्हाला, ते लिंक क्लिक करून ते व्हिडिओ सगळे तुम्हाला बघतो। प्रॅक्टिकल करताना थोडं नाही आठवलं तर बघावं लागतं, कारण आपण समजत नाही थोडं.